So welcome back to my YouTube channel, and this is the part 4 of our movie ticket booking application. And in this video, I will going to correct this part also. Like we need to add some select date also here. So I have completed this part also, and also I have added one go to dashboard for the admin part. Okay, so whenever we add our backend in this front end, so we will provide one go to dashboard page for the our admin only. Okay, you can see we have this go to dashboard, and in dashboard I will create one this custom data table. We will create this custom data table, and we will also provide to add movie also. So you can see we have this form, we have this load images form also. So whenever you can create and movies also, and also we have covered this users. So you can see whatever the available users and this theater. So you can add multiple theater also. So in this whole video, I will show you how to create this dashboard, this sidebar, and React form also. Okay. So yeah, watch the video till the end and like and share with your friends. Okay, so let's start implementation of this UI part. Okay, तो हाय एवरीवन, लाइक हमने उस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने ये डायनामिक पेज क्रिएट किया था एंड विद द फॉर्म. ओके, तो नाउ देयर इज वन करेक्शन. लाइक हमें ना यहाँ पे मैं भूल गया था, सॉरी. हमने यहाँ पे कोई डेट का ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो वी विल ऐड वन डेट ऑप्शन ही. ओके, सो यूजर कैन सेलेक्ट डेट. ओके, so let's start implementing that part also. Okay, so let's go into the file where we are implementing our ticket form. Okay, yeah, so here before the select theater we will add our date option. Okay, so for date also, let's copy this part, control C and control V. Okay, and what we will do, select date. Okay, select date, and the तो यहाँ पे हम वो भी वही डेट लिस्ट करेंगे जिनके लिए वो मूवी अवेलेबल है. ओके, ओके, सो व्हाट वी विल डू, इसके लिए पहले हम डेट क्रिएट कर लेते हैं. लाइक कॉन्स्ट इट्स एंड डेट कैन बी लाइक 17 अप्रैल. ओके, 17 अप्रैल, 19 अप्रैल काइंड ऑफ. ओके, तो अभी के लिए मैं हार्ड कोडेड 3 या 4 लिख दे रहा हूँ. ओके, 19, 21 अप्रैल. April. What is the spelling of April? Okay, so 21 अप्रैल एंड देन अभी के लिए 3 ही रखते हैं. ओके, सो वी हैव डेट्स एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस डेट को मैप कर देंगे. ओके, तो डेट्स एंड सिंपली हम अपने डेट्स को भी यहाँ पे चेंज करेंगे. सो हमारे पास यहाँ पे भी सेलेक्ट टाइम के साथ साथ हमारे पास सेलेक्ट डेट भी रहना चाहिए. एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं अप्रैल को चूज कर रहा. अप्रैल. ओके, 17 अप्रैल. ओके, बाय डिफ़ॉल्ट 17 अप्रैल. ओके, and this will be selected date. Okay, selected date and selected date. Okay, and just replace time with date. Okay, so where here you can see we have data, but we don't need data, we need date. Okay, date, and here also date, and so just replace theater with date. So I'm just doing date, this one also. Okay, right. And now let's implement this handler. So handle date, and what we will do, we will just copy this part and write handle date here and set selected date also.
okay, and replace with date with time, date and date, okay. And now we need to use selected date here, selected date, okay. So you can see we have created this part. So what I will do now, what we need to do, just change its style little bit, okay, and the icon, okay. So for date I will use for date what we can use, I'm using any color, you can use like you can take randomly any not this one, okay, let's use this one. Border will be this, and अगर वो select हो गया तो green, and the icon also. So icon के लिए date में अगर कोई calendar नाम का कोई है तो okay, you can see we have this. So now we have date, we can select date also. तो बेसिकली ये से है ना करेक्शन, इस ये जो फॉर्म है अभी के लिए मैं बस यूआई को क्रिएट कर रहा हूँ, हम इसको प्रॉपर फॉर्म क्रिएट करेंगे जब हमारा बैकएंड रेडी हो जाएगा. And there is lots of more thing that I will explain. Okay, so now what I will do, like you can see we have this date and this form is ready, okay. And again, like for the admin perspective, we need to allow, like admin can create any kind any movies, okay, any movies, any theaters and date also, okay. So what we will do, we will create a admin dashboard also, okay. So in this section what I will do, I'm not going to do much. अगर लाइक अगर वो एडमिन लॉगिन कर रहा है ना तो हम यहाँ पे रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम रखेंगे. अगर एडमिन लॉगिन कर रहा है तो दे विल हैव वन like navigation here, okay, like dashboard for the admin only, okay. So let's create that option here. So in the navbar, what I will do, I will put one div, and if it is admin only, we will show this one, okay. So that we will like हम यहाँ पे उसको यूजर्स के लॉगिन क्रीडेंशियल से हम उसको लाइक डिटरमाइन करेंगे कि कौन एडमिन है कौन नॉर्मल यूजर, ओके. So it will take us on dashboard, okay, dashboard, and go to dashboard. तो आज हम इस डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बैकएंड को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ओके. एंड आफ्टर बैकएंड वी विल इंटीग्रेट बोथ फ्रंट एंड and backend with the like I will implement front end with the backend, okay. So let's start creating this slash dashboard root. हम आएंगे अपने main.tsx फाइल में जहाँ पे हम उस पाथ को क्रिएट करेंगे, ओके. सो इस पाथ को मुझे लाइक नॉर्मल यूजर से ऑथेंटिक भी करना रहेगा, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे हम एक कोई प्रोवाइडर ऑथ प्रोवाइडर ऐड करेंगे उसमें. बट अभी के लिए जस्ट लाइक राइट हियर डैशबोर्ड, सॉरी डैशबोर्ड, एंड इसके लिए हम एक डैशबोर्ड फोल्डर क्रिएट करेंगे, ओके. सो डैशबोर्ड में मल्टीपल थिंग्स आने वाले हैं, तो हम एक फोल्डर ही डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे. सो just come into component and create one dashboard, okay. So dashboard, and इसका जो इंडेक्स होगा ना वो इंडेक्स डॉट डैशबोर्ड पेज, ओके. तो बेसिकली यही पेज हमें यहाँ पे रेंडर करना है, डैशबोर्ड पेज. यू कैन सी, let's come here and check we have this go to dashboard. When user click on this go to dashboard, they will go on dashboard page, okay. Now in dashboard what we will need to create, like we will allow user to check how many movies they have. They can create movies, they can create theaters also for their specific movie, okay. So what I will do, I will create one sidebar here, and after that we will implement our like all the other functionality, okay. So first I will implement here sidebar. So let's start implementing that part also. So dashboard page will have one sidebar, okay. Here let me divide it into two part. So sidebar will have 20% of this width, okay. So flex, and this here I will use
सेव राइट नाउ, लाइक मैं ये साइड बार एंड विथ को कैसे डिवाइड करना है वो बता रहा हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फ्लैक्स जो है 20% कर लेंगे। ओके, इसका मतलब है कि ये जो है विथ का 20% कवर करेगा एंड सेकेंड वाले को हम फ्लैक्स 1 कर लेंगे, तो जो भी बचा रहेगा वो ये कवर कर लेगा। ओके, तो विथ स्क्रीन होगी एंड अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, यू कैन सी, यू कांट सी एनीथिंग। बट अभी अगर मैं कलर ऐड करता हूँ ना, तो यू कैन सी बाई ऐड बीजी, बीजी एनी कलर यू कैन चूज। ओके, एंड बीजी ब्लैक या वायलेट। ओके, nothing happened because why we have flags 20%. Okay, let me check what is the issue. So just inspect it and try to debug it. Okay, मैं इसको ओपन करता हूँ। यू कैन सी मेन है फुल विथ एंड उसके अंदर div। ओके, सो इसकी हाइट नहीं है। ओके, तो इसकी जो मिनिमम हाइट होगी ना वो भी होगी, मेन हाइट फुल होगी। ओके, फुल मीन्स 100% क्योंकि इसकी पेरेंट के पास हाइट है। ओके, लेट मी चेक अगेन। Mean height is correct. Okay, so now you can see, oh, it's a bit weird. It should be 20 and it's 80%. Okay, so I will write 80% here. Now you can see, तो हम ऐसे ही अपना ये साइड बार क्रिएट करेंगे। सो हमारा साइड बार 20 होगा एंड दिस विल बी 80%। ओके, तो इन साइड बार लेट मी क्रिएट क्विकली साइड बार। तो हम एक यहाँ पे साइड बार का फोल्डर क्रिएट करेंगे, साइड बार डॉट। तो बेसिकली मैं इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करने वाला फंक्शनैलिटी, बस इसको नेविगेट करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। साइड बार विल गिव अस सम लिंक। ओके, लिंक विल बी like here you can type any link. Okay, like let's create one component here for link. Okay, sidebar link, sidebar link. And if you want to create like a beautiful sidebar, you can refer my first video. I have created a sidebar on that one. Okay, but here I'm not going to create any like model sidebar. I will use a simple one. Okay, so here we will have a anchor tag, and in this anchor tag href will be this URL. Okay, and this URL and one thing. Okay, let's create interface for it. Okay, तो हम इसका props के लिए interface create कर लेंगे। interface sidebar link props, sidebar link props। okay, and तो props में हमें क्या क्या पास करना, first URL which that will be string and label। okay, label can be anything, it can be string number, so उसके लिए हम इसका type देंगे node। okay, create node, just use that interface here, sidebar props, sidebar link props, sorry, and URL and label। ओके, सो ये जो URL होगा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, if here URL and the label। ओके, so I will show you how to use this sidebar। पहले हम एक यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे साइडबार लिंक। ओके, साइडबार और जस्ट कॉल लिंक्स। ओके, लिंक्स, एंड हम जो इसकी लिंक्स होगी उसका जो टाइप होगा ये साइड बार लिंक प्रॉप से होगा, तो हम URL देंगे। URL विल बी फर्स्ट वन मूवी स्लैश मूवी या स्लैश डैशबोर्ड स्लैश मूवी। ओके, डैशबोर्ड स्लैश मूवी एंड सेकेंड विल बी लेबल। ओके, सो लेबल विल बी मूवी। ऐसे करते हैं, यप, एंड वन कॉमा हियर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अपने लिंक्स को क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं उस लिंक के इस एरे के थ्रू मैं उस लिंक को मैप कर सकूँ। ओके, तो
we have movie, and second will be theater. So user can create theater also, and theater, movie, theater, and what else? What else we need? We have theater, we have users. Okay, so whatever the user, I will show the that user also. Okay. Okay, now we have links. Just we need to map here. Okay, link control ओपन करली ब्रेसेस. जब भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं तो हम मैप के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर यूज करेंगे. ओके, तो लिंक एंड इट विल रिटर्न. तो मैप को हमेशा ही जेएसएक्स रिटर्न करना है. ओके, तो हमारा जेएसएक्स होगा साइड बार लिंक, जो हमारा नीचे वाला कंपोनेंट है. ओके, एंड यूआरएल. तो बेसिकली हम यहाँ से, तो अगर बिगनर लेवल पे हो आप, सो लाइक यू कैन राइट दिस वन यूआरएल and you can type like link dot url. Okay, and for the same for the label, but what I will do, link and url का ये जो की है वो सेम है, तो हम यहाँ पे बस डिस्ट्रक्चर कर देंगे ना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा. ओके, तो इसमें हमने प्रॉप्स पास कर दिया url एंड लेबल रिक्वायर्ड. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, अभी हम इसका वो css लिखेंगे. what's the issue, sidebar we are not using sidebar. Okay, so just come here and give that sidebar here. Okay, sidebar, the control j, sidebar, sorry. So you can see we have movie, but हम इसको थोड़ा सा अभी what I will do, मैं इसको ये करता हूँ. Okay, so what we need to do, we have our redirect button. Okay, तो हम उस redirect button का यूज़ करेंगे यहाँ पे. So just come here and use that redirect button. I was forgot to. Okay, so redirect button, and redirect button will be, sorry, इसके पास होगा label, and I think one more thing, URL. Okay, so URL will be URL. Okay, so this sidebar link हम इसको थोड़ा सा modify करेंगे, अभी नहीं. So let's see how it looking. So you can see we have this very weird button here. Okay, so we have this button. Now what I will do, I will like write some css to beautiful letters to like make it more attractive. Okay, तो यहाँ पे हम एक क्लास नेम पास करेंगे. क्लास में ये ऑप्शनल होगा. सो इंटरफेस में कुछ भी अगर हमें ऑप्शनल बनाना, जस्ट पुट क्वेश्चन मार्क. ओके, एंड विल बी स्ट्रिंग, जस्ट राइट ही क्लास नेम, क्लास नेम. ओके, तो हम इसको जहाँ भी यूज़ करेंगे हम पेरेंट्स से इसको सी एस एस भी पास करेंगे. ओके, तो यू कैन सी अगर मैंने इसको ऑप्शनल बना दिया, आप इसको भेजो या ना भेजो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो जस्ट लेट मी स्टार्ट टाइपिंग. तो क्लास नेम विल बी फुल and busy will be what, busy will be what, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ना, आई वांट समथिंग, सॉरी, इंडिगो, इंडिगो 300. ओके, तो नाउ यू कैन सी वी हैव दिस, एंड मैं इसको थोड़ा सा और क्लास नेम फ्लैक्स, एंड फ्लैक्स को जो हम इसको कॉलम कर देंगे. तो फ्लैक्स कॉल, अभी सब हमारे वर्टिकली जा रहे थे, अभी हमारे पास ये फ्लैक्स कॉल आ गया. बट ये देखो अभी बहुत ही बेकार लग रहा है ये, मैं इसको फिक्स करूँगा. डोंट वरी. So what I will do, I will use some CSS. You can write CSS with your with own also. आपको अगर जो कलर चेंज करना है इसका, you can do. What's the issue? Okay, sorry. So we have this movie, and हम इसको क्या करेंगे ना,
let me give some padding 6. Okay, so you can see we have movie and movie, we have like I will I will update this array. तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस एरो को अपडेट करता हूँ। तो डैशबोर्ड मूवी मूवी, ओके, सो थिएटर, सॉरी, थिएटर एंड यूजर्स, ओके, यूजर्स, यू कैन सी वी हैव मूवी, थिएटर एंड यूजर्स। तो बेसिकली इसकी क्लिक पे वो हमें मूवीज एंड थिएटर विद थिएटर सी यूजर्स, ओके, व्हाट इज दिस coming here? Let me see what is this. Okay, so it's a not found image. Okay, okay, okay. So what we need to do, just go on not found section and we need to add one this. Okay, so फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देना यहाँ पे। कैन सी वी हैव नॉट फाउंड, क्योंकि हमने ये अभी क्रिएट ही नहीं किया है। ओके, यू कैन लाइक आपको इसको जैसा भी करना रहेगा, यू कैन पुट आइकन एंड एनीथिंग। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ एंड यू कैन मेक इट more beautiful also. So this, okay, let me make it for you. So what I will do, bg will be transparent, so bg will be white, okay, and color will be, text will be what text will be black, font will be bold. You can see we have movie, we have theater and we have this effect, okay, and on hover हम इसका कलर जो है white कर देंगे एंड ऑन होवर। तो फॉर होवर लिखने के लिए जस्ट टाइप होवर एंड होवर पे आपको क्या करना है, सो इसका जो टेक्स्ट कलर होगा ना, व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट वाइट। यू कैन सी वी हैव दिस बटन, ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट दिस लेआउट, ओके, सो बट यू कैन सी वी हैव दिस साइड बार, बट ये साइड बार हमें मूवीज, थिएटर एंड यूजर्स तीनों के लिए चाहिए रहेगा ना। सो इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग अगेन अगेन, मैं इसका एक लेआउट क्रिएट करता हूँ। यू कैन सी वी हैव दिस इंडेक्स डॉट ts एंड यहाँ पे जो है ना, हम यहाँ पे आउटलेट का यूज़ करेंगे एंड इसके जितने भी चिल्ड्रन रहेंगे हमें यहाँ पे जस्ट वी नीड टू रेंट, ओके, सॉरी, आउटलेट यूज़ करना है, ये आउटडेंट है, तो आउटलेट यूज़ करेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर, ओके। तो बेसिकली आउटलेट क्या करेगा, ये डैशबोर्ड पेज है ना, सो डैशबोर्ड स्लैश एनीथिंग उन सबको यहाँ पे ही वो रेंडर करवाएगा, ओके। तो लेट मी गो इन द मेन डॉट tsx फाइल एंड यू कैन सी वी हैव डैशबोर्ड। अभी हम यहाँ पे चिल्ड्रन क्रिएट करेंगे, ओके, तो चिल्ड्रंस एंड चिल्ड्रन के लिए सेम path, path will be what, path will be slash dashboard, I think we can write slash and movie slash movie and एलिमेंट के लिए मैं भी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे इसका एलिमेंट लिखता हूँ h1 मूवी, ओके, सो लेट टेस्ट इट, हमें ये क्या दिखा रहा। तो गो टू डैशबोर्ड, ओके, देयर इज डैशबोर्ड स्लैश मूवी, ओके। सो हमें ये क्या करना है ना, इसको जो हमारा ये मूवी वाला रहेगा इसको हम तो स्लैश पे ही ओपन करेंगे, ओके, सो दैट्स द इशू। अगर सी अगर मैं डैशबोर्ड पे अभी जाऊँगा ना, सो ओपन, ओके, द इशू, लेट मी फिगर आउट डैशबोर्ड, वी हैव डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पेज, in dashboard page we have outlet and that outlet is will render path, okay, dashboards, okay, let me fix it, okay, let me see if there any issue in console, okay, absolute path dashboard is not valid, must be start with combined path, okay, okay, you can see ये बोल रहा है कंबाइन पाथ के साथ ही आना चाहिए, सो जस्ट लाइक दिस वन। तो स्लैश डैशबोर्ड पे हम स्लैश डैशबोर्ड पे हम क्या करेंगे, मूवी को रेंडर करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ तो वहाँ पे दिखना चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, यू कैन सी वी हैव मूवी,
तो डैशबोर्ड पे हमें हमारी जो लाइक इंडेक्स वाला जो होगा ये, ओके, तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो व्हाट आई विल डू, यू कैन सी वी हैव दिस, तो हम यहाँ पे एक मूवी मूवी कर कर एक डैश डैशबोर्ड मूवी पेज, ओके, डैशबोर्ड मूवी ऐसा एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे एंड हम वहाँ पे उसके फॉर्म्स हैं लाइक डेटा टेबल को हम वहाँ पे रेंडर करेंगे। मैं बताऊँगा कैसे इसमें डेटा टेबल भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर नाउ वी डोंट हैव दिस डैशबोर्ड मूवी पेज, सो लेट्स क्रिएट दैट वन। कम इनटू डैशबोर्ड एंड क्रिएट वन फाइल, डैशबोर्ड मूवी पेज, ओके, तो मूवी पेज डॉट tsx, okay, let me show you the name. So you can see dashboard movie page, okay, so just create one dashboard movie page and okay, and I will import that dashboard page here, okay, dashboard movie page. तो नाउ ये जो डैशबोर्ड होगा ये पे आ जाएगा एंड यहाँ पे, तो अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं ना, हमारे पास जितनी भी मूवीज रहेंगी उसे हम एक टेबल में शो करेंगे, ओके। तो इस लाइक डेटा को हमें कलेक्ट करना भी तो होगा, सो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा सेट सीन में, हम एक डेटा टेबल क्रिएट करेंगे, ओके। तो आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट दैट, बहुत ईजी है। तो चूज वेट and no, no, not this one. Come to component. In component you can see we have data table, so you can see we have this data table, so we can use either this one or we can create our custom. So मैं यहाँ पे अपने खुद का ही हम लोग कस्टम क्रिएट करने वाले हैं। तो कस्टम के लिए व्हाट वी विल डू, हमें इसको इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा। सो जस्ट npx setcn add table, so just let me split it, just copy it from the setcn website and paste it here. There will be one more command, तो बेसिकली टेबल को ऐड कर रहा है, जो डेटा टेबल है ना हमारा वो इस पे ही डिपेंडेंट है, टेबल पे, ओके। एंड दिस टेन स्टैक रिएक्ट टेबल, सो अगर आप टेन स्टैक रिएक्ट टेबल के बारे में पढ़ते हो ना, तो यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा टेबल लाइक दिस, आपको साइड चेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्राई, ओके, कैन सी द नोट्स, ओके। सो लेट्स run this one also, copy it and paste it here। तो बेसिकली अभी हमें एक डेटा टेबल क्रिएट करना है, सो मैं यहाँ पे एक डेटा टेबल के नाम का यूआई के अंदर, मैं एक डेटा टेबल के नाम का फोल्डर क्रिएट करता हूँ, डेटा और tsx, ओके। एंड हम यहाँ पे अपना डेटाबेस डेटा टेबल को क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली डेटा टेबल को आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कम हियर एंड यहाँ पे सब दिया हुआ है, यू कैन यूज इट, ओके। तो यू कैन सी ये बोला है डेटा टेबल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए एंड उसमें ये पेस्ट कर देने के लिए, तो हम ऐसा ही सेम करेंगे, जस्ट पेस्ट हियर, ओके, स्किप दिस फॉर नाउ। एंड अभी ये हमारा डेटा टेबल हो गया, ओके। तो इसमें अभी जो हमारा डेटा टेबल है नॉर्मल है, इसमें पेजिनेशन नहीं है एंड इसमें कोई सर्च का ऑप्शन भी नहीं है, तो लेट्स ऐड दैट पार्ट आल्सो, ओके। तो यू कैन कम डाउन, you can see we have pagination option, okay, so just copy this part, get pagination row model and paste it here, जैसा जैसा इन्होंने बोला ना वैसा सेम स्टेप करो and we में डेटा टेबल, we can create one data table, okay, okay, so sorry, sorry। तो हमें बस उसकी जो सेट सीन के जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करने हैं, तो यू कैन सी ये वाला स्टेप रहेगा यहाँ पर, हियर जस्ट पेस्ट है हियर ऑल्सो, एंड देन हमें कुछ HTML पास करनी होगी, सो यू कैन सी इसने बोला यहाँ पे एक डिव से इसको रैप कर दो एंड ये जो पार्ट है ना इसका प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन को यहाँ से कॉपी कर लो। तो व्हाट आई विल डू, आई विल रैप दिस वन विद द डिव, ओके, एंड इसको डिव से रैप करने के बाद यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर उसको पेस्ट कर दो एंड बटन को इंपोर्ट कर दो, ओके। ना अगर मैं आपको दिखाऊँ ये डेटा टेबल कैसा दिख रहा है, सो लेट्स इंपोर्ट दिस डेटा टेबल इन डैशबोर्ड पेज, व्हाट आई विल डू, कंट्रोल, just to import the data table, okay, that's it, data, एंड उस पे इसको कॉलम डिफिनीशन एंड डेटा चाहिए होता है, ओके, सो हम इसके लिए कॉलम डिफिनीशन क्रिएट करेंगे।
So before starting the video, I want to tell something like if you are watching my videos, so you can see I have uploaded 4 videos. So if you find any difficulties, just comment down. I will answer all the queries. Okay. And also I have created one community here. So you can come on my community, and here you can write your questions. Okay. So what I will do, I will reply all the question on all the query. If the query is a little bit difficult, so I will come live and solve that query. Okay. So let's start videos, and let me go on localhost. Okay. So okay, sorry, on the 517. Okay. So for now, what we are doing, we have one dashboard here. Okay, what's the problem? There is some problem. Okay, let me see why it is saying that. So cannot read the property of undefined. Okay, so there is something जिसको वो error. Okay, so exactly why this error is coming because of this. Okay, तो मैं क्या करूँगा ना, अभी के लिए तो मैं यहाँ पे let me write h1 if error is gone or not. Okay, so let me refresh and you can see. तो अभी हमारा पास जो हमारा जो डैशबोर्ड होगा, इसका मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ. तो हमारा ये मूवी होगा, थिएटर होगा एंड यूजर्स होंगे. ओके. So basically what I will do, I will create here one data table and the like add button to add the movies. Okay. तो अभी you can see हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसका नाम मैं दूंगा मूवी. ओके. एंड इस मूवी के अंदर ही हम अपना जो लाइक जब भी हमें इस डेटा टेबल का यूज़ करना होगा ना, जो हमने डेटा टेबल ये क्रिएट किया है, अगर इसका यूज़ करना होगा तो यू कैन सी इट हैज़ 2 प्रॉप्स. ओके. सो जब भी हम इस डेटा टेबल का यूज़ करेंगे, वेर एवर वी नीड टू यूज़, हमें ये 2 प्रॉप्स तो पास करने हैं. इट इज़ मैंडेटरी. अगर ये ऐसा रहता ना तो ये ऑप्शनल रहता, हम पास करें या ना, बट यहाँ पे ये मैंडेटरी है. तो जब भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो एरर देगा, क्योंकि डेटा टेबल में वो पास नहीं कर रहे हैं. ओके. तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन मूवी फोल्डर एंड यहाँ पे हम इसका कॉलम क्रिएट करेंगे. ओके. सो आई विल कॉल इट मूवी कॉलम. ओके. You can name it anything. I will write movie column dot tsx and then we will create our column. Okay, so basically column क्या होता है, कॉलम लाइक हमारा जो डेटा टेबल होगा ना, उसके कॉलम्स नेम क्या होंगे एंड व्हाट डेटा इट गोना डिस्प्ले, ये इसकी डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखते हैं. सो लेट मी राइट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट. तो हमें यहाँ से बस एक कॉलम की डिफिनीशन एक्सपोर्ट करनी है. सो मूवी कॉलम एंड ये एक होगा, इसका जो टाइप होगा वो होगा कॉलम डेफ. ओके. सो दिस वन 10 स्टैक रिएक्ट टेबल से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे एंड ये एरे होगा. तो हमें बस एक एरे रिटर्न करना है एंड ऑल्सो इसको एक टाइप भी चाहिए होगा. ओके. तो हम यहाँ पे टाइप क्रिएट कर लेते हैं. तो टाइप के लिए हम टाइप्स को, जितने भी टाइप्स यहाँ यूज़ करने वाले हैं, वो सब टाइप्स में यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा एंड उसके अंदर डालेंगे. ओके. और फाइल तो टाइप्स डॉट पी एस. तो जितनी भी टाइप्स, अगर आपको कोई भी टाइप्स क्रिएट करना है ना, सो उसके लिए एक अलग से ही फोल्डर क्रिएट कर लो एंड वहाँ पे वो टाइप्स डालते जाओ. तो अभी के लिए मैं यहाँ से जो टाइप एक्सपोर्ट करूँगा मूवी, तो बेसिकली ये जो टाइप होगा ना, हम इसका क्या इसमें हमारे पास होंगे मूवीज़ का जो पोस्टर होगा, इमेज यूआरएल. बेसिकली ये हम लोग मूवी क्रिएट करेंगे उसके लिए. ओके. तो इमेज यूआरएल एंड का जो टाइप होगा स्ट्रिंग एंड देन वी विल हैव नेम ऑफ द मूवी. तो नेम विल ऑल्सो स्ट्रिंग एंड ड्यूरेशन duration will be also string and name, duration, date, release date. So release date. So for now I'm writing this thing, but when we create our backend, उसके टाइम पे जो भी उसमें like fields रहेंगे वो सब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा. बट अभी के लिए इमेज, नेम, ड्यूरेशन एंड रिलीज डेट एंड IMD रेटिंग also. ओके. IMD रेटिंग. ओके. तो अभी हम इसका जो कॉलम है, इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया. कॉलम की जो टाइप्स है. ओके. एंड वो टाइप को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. विल जस्ट पास लाइक दिस मूवी. यू कैन सी
स्लैश लिप स्लैश टाइप्स, तो हम यहाँ पे टाइप पास कर देंगे। सो बेसिकली ये अभी उन्हीं कॉलम्स को अलाउ करेगा जो जो इसमें हैं। ओके, तो लेट मी क्रिएट कॉलम्स। सो कॉलम के लिए पहले हमें उसका कीज देना पड़ेगा कि वो किस किस की के डेटा को डिस्प्ले करे। तो एक्सेसर की, एंड यहाँ पे इसका होगा, यू कैन सी हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये 3 और 5 इसके बीच में ये केवल हो सकता है, यू कांट राइट एनीथिंग हियर। ओके, इफ आई ट्राई टू राइट, you can see it is throwing error. We can only type name or like whatever the fields here, only that field we can write here. Okay, and what will the header? So basically header क्या होता है ना, header जो कॉलम पे डिस्प्ले होगा। मूवी नेम, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, मूवी नेम। एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओके, यहाँ पे ऑलरेडी, तो ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेंगे। सो जस्ट सेलेक्ट इट एंड प्रेस शिफ्ट अल्ट एंड एरो डाउन, 1 2 3 4, आई थिंक 3 5। ओके, सो 5 टाइम, एंड हम इसकी कीज एंड हेडर को चेंज कर देंगे। सो मूवी इमेज यूआरएल पे लिखूंगा मैं इमेज। तो मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन वॉच दैट वन ऑल्सो। इमेज यूआरएल नेम, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ड्यूरेशन क्या है, एंड ड्यूरेशन, तो बेस सॉरी, तो बेसिकली ये ड्यूरेशन होगा, एंड इसके बाद रिलीज डेट। तो जो भी फील्ड्स रहेंगे हम यहाँ पे बस उसको टाइप करते जाएंगे। रिलीज डेट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिलीज पैटर्न है, रिलीज डेट। ओके, so we have released it here. Let me copy this. So try to copy and paste. Okay, and miss something spell. Okay, तो यहाँ पे होगा हमारा रिलीज डेट, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी उसकी डिफिनेशंस रहेंगे ना, लाइक जो भी हमारा उसमें कॉलम में रहेगा, हम वही चीज़ें वहाँ पे लिखेंगे। एंड द लास्ट वन विल बी IMD rating. Okay, how many I have? 1 2 3 4 and 5. Okay, we don't need this one, we have only 5 for now, we have only 5. Okay, so I am rating, you can see अगर मैं इसमें कुछ भी, यू कैन सी वी हैव IMD रेटिंग, एंड ये एक्सेसर की रहेगा, एंड उसमें यहाँ पे IMD रेटिंग लिख दे रहा। ओके, IM रेटिंग। तो ये अभी हमारा जो है कॉलम की डिफिनेशन क्रिएट है, तो इसको हम पास करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली हमें इसमें कॉलम एंड उसका डेटा पास करना होता है, कॉलम्स एंड मूवी कॉलम, मूवी कॉलम, यू कैन सी स्लैश मूवी कॉलम, एंड इसको अभी डेटा, तो अभी के लिए मैं इसको एम्प्टी पास कर दे रहा हूँ। ओके, सॉरी, नाउ लेट्स सी हाउ इट्स लुकिंग। ओके, तो यू कैन सी वी हैव दिस डेटा, बट ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ख़राब लग रहा, तो वी विल चेंज इट। ओके, एंड इसका मैं आई विल डू मूवी, इसका जो डेटा टेबल है ना, इसका हमें बैकग्राउंड वाइट करना पड़ेगा, एंड राइट बी क्लास नेम बीजी वाइट। ओके, यू कैन सी वी हैव बीजी वाइट, एंड अभी हमें इसको क्या करना है ना। ओके, व्हाट आई विल नीड, आई नीड टू डू, इसको थोड़ा सा राउंडेड करता हूँ मैं, 2 XL, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेल करते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो डेटा टेबल है ना, इसको हमें हर जगह यूज़ करने वाला हूँ, तो ये एक कस्टम डेटा टेबल है, इसका हम जहाँ चाहें वहाँ यूज कर सकते हैं। wherever you need to display your data in data table, just use this one and pass the column definition and the value. Okay, setcn का ये डाटा टेबल अच्छा है, इसको और भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अगर अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो आई हैव दिस, एंड हम यहाँ पे आएंगे अपने डैशबोर्ड पर, एंड वहाँ पर यहाँ पर अभी मुझे इसको रैप करना होगा। ओके, तो इसके ऊपर मैं इसका हेडर एंड ऑल थिंग्स लिखने वाला हूँ। ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट div, एंड तो बेसिकली ये जो div होगा ना, इसमें हम लिखेंगे स्पेस ऑफ y विल बी 6। ओके, एंड एक और चिल्ड्रेन होगा div, एंड div के अंदर हमारे पास होगा H1 पे मैं लिखूंगा मूवीज। ओके,
एंड यहाँ पे हम इसके मूवीज़ को भी, अभी के लिए मैं डमी लिख दे रहा हूँ, हम यहाँ पे मूवीज़ काउंट भी दिखाएंगे। एंड नेक्स्ट विल भी एक बटन होगी जो रिडायरेक्ट करेगी हमें क्रिएट न्यू पर। ओके, सो हम यहाँ पे अपनी रिडायरेक्ट बटन यूज कर ले रहे हैं। ओके, तो बेसिकली ये बटन हमें कहाँ पे ले जाएगी, मूवी वाले पेज पे। सो ऐड मूवी। ओके, यू कैन सी यूआरएल इसको पास करना होगा। तो अभी के लिए स्लैश मूवी स्लैश क्रिएट स्लैश न्यू। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट कर देंगे, स्लैश क्रिएट स्लैश न्यू। तो लेट्स सी हाउ लुकिंग। सो यू कैन सी ये भी बहुत ही बेकार लग रहा। तो हम इसमें थोड़ा सा पैडिंग देंगे, पैडिंग ऑफ 3। एंड इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ, यू कैन डू योर सेल्फ ऑल्सो। सॉरी। तो फ्लैक्स एंड जस्टिफाई बिटवीन आइटम विल बी सेंटर। एंड इसका मैं बिजी वाइट करता हूँ। एंड राउंडेड विल बी 4 एक्सएल, सो थोड़ा राउंडेड हो। ओके, कुछ ज़्यादा यार हो गया। तो हम इसकी इसमें कुछ पैडिंग देते हैं, पैडिंग ऑफ 4। आई थिंक 4 बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 4 सही हो गया। इसका जो राउंडेड है ना, मैं 2 कर दे रहा। ओके गुड। तो यू कैन सी वी हैव दिस मूवी। एंड इसका तो हम इसको थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर देंगे। ओके, सो टेक्स्ट इसका जो होगा वो होगा इंडिगो। तो मैं इंडिगो एंड वाइट का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे। इंडिगो 900, font will be little bit bold. You can see we have movie 23 and text also, text will be for Excel. You can see we have movie and we have this button जो हमें रिडायरेक्ट करेगी। अभी मैंने इसका वो नहीं क्रिएट किया है। एंड यू कैन सी हमारे पास ये डेटा टेबल है। अभी मैं इसमें क्या कुछ डमी डेटा डालता हूँ। ओके, लाइक अगर मैंने नेम डाल दिया, नेम विल बी अभी के लिए धुरंधर मूवी नहीं आ रही है, धुरंधर। एंड IMD रेटिंग, image URL can be anything, image URL and okay, let's use चैट जीपीटी। हम खुद से क्यों लेंगे भाई, जब हमारे पास चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी का यूज़ लाइक डमी डेटा क्रिएट करवाना है ये सब के लिए। सो चैट जीपीटी इज़ गुड। वो आप थोड़े छोटे मोटे डाउट जो क्लियर करने हैं उस सब के लिए तो चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हो। बट हमेशा चैट जीपीटी यूज़ करना इट्स नॉट गुड, क्योंकि इससे आपकी थिंकिंग जो लॉजिक होती है ना वो कम होती है। पहले आप खुद से लॉजिक क्रिएट करो एंड देन आप चैट जीपीटी हो जाओ। सो गिव मी 10 डमी डेटा ऑफ दिस टाइप। ओके, तो बेसिकली ये जनरेट कर देगा हमारे लिए डेटा। ओके, लेकिन सी इसमें मूवीज़ की यूआरएल भी डाल दी है, तो विच इज़ गुड। अभी मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको बता सकता हूँ। अभी हमारे पास मूवी की यूआरएल है ना, तो यहाँ पे एक और पार्ट है जो मैं बताना चाहूँगा। तो लेट्स पेस्ट दिस पार्ट हियर। तो वी हैव मूवी। ओके, एंड ये जो मूवीज़ है ना, फर्स्ट, तो ये जो मूवीज़ हैं मैं इसको यहाँ पे ही पास कर दूंगा, वो उसी डेटा के है ना, वही स्ट्रक्चर है। सो ये movies यहाँ पे हम पास कर देंगे। एंड नाउ लेट्स सी, यू कैन सी हमारे पास इमेज यूआरएल है, ड्यूरेशन है एंड IMD रेटिंग है। तो बेसिकली अभी मुझे ना ये जो इमेज है ना, हमें फॉर्मेटिंग करना होगा। ओके, सो सेल्फ फॉर्मेटिंग, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सेट सीन में, सेल्फ फॉर्मेटिंग। ओके, तो बेसिकली सेल्फ फॉर्मेटिंग क्या होता है कि हम इसका जो वैल्यू होता है ना उसको फॉर्मेट करते हैं। तो लेट मी शो यू हाउ टू डू दैट। तो जो हमारा मूवी कॉलम है ना, यू कैन सी मैंने यहाँ पे TSX लिखा है, मतलब इसमें GSX भी रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा मूवी यूआरएल है ना, हम एक्सेसर की को हटा देंगे यहाँ पे। ओके, एंड व्हाट आई विल राइट सेल। सेल एक फंक्शन होता है जो हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। इसके पास रो कर एक ये रहेगा। ओके, सो ये कॉलबैक फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है कोई भी JSX। तो यहाँ पे मैं यू रिटर्न करूँगा इमेज। ओके, इमेज एंड इसका SRC जो होगा दैट विल बी रो डॉट ओरिजिनल। सो बेसिकली ये ओरिजिनल जो होता है ना, ये हमारा एक्चुअल उस रो का डेटा होता है इसके पास। एंड डॉट इमेज यूआरएल। तो ये जो रो होता है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ डेटा इज इक्वल टू रो डॉट ओरिजिनल, तो अगर आप इस पर होवर करोगे ना तो यू कैन सी
इसका जो टाइप है वो मूवी है। ओके, तो इसके पास वो मूवीज होती हैं। एंड अभी मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया, सॉरी। तो अल्ट अल्ट विल बी मूवीज इमेज। ओके, मूवीज मूवी इमेज। ना यू कैन सी, अगर ये यूआरएल सही होंगे तो हमें इमेज दिखेंगे। आई थिंक यूआरएल, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ यूआरएल चल भी रहा है या नहीं। कंट्रोल सी हो गया। ओके, सो दिस इज नॉट अ डमी, ये लाइक उसने गलत ही इमेज दे दिया। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ इमेज आएंगे, मूवीज इमेज एपीआई हो गया। कोई एपीआई है जो हमें मूवीज़ के इमेजेस दे सकती है, तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो यू कैन सी वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ, नॉट दिस वन, लेट मी यूज चैट जीपीटी अगेन। चैट जीपीटी है, मैं देखा, सॉरी। ओके, तो इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दो चैट जीपीटी को, एंड मैं प्रॉम्प्ट बताता हूँ प्रॉम्प्ट क्या डालना है। ओके, यू गिव अस वैलिड इमेज यूआरएल। ओके, वैलिड इमेज। तो बेसिकली ये कोई भी डमी यूआरएल उठा के देगा। आई कैन, सो यू कैन सी इसने अनप्लस से कुछ तो इमेजेस उठाए हैं जो हमेशा चेंज होती रहती हैं। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ही, ओके, एंड जस्ट कम हियर ऑन द। तो अभी हम इसको देखते हैं। यू कैन सी, ओ माय गॉड, ये बहुत ही बड़ी बड़ी इमेजेस हैं। एंड इसका क्या है कि जितनी बार हम रिफ्रेश करेंगे ना, ये इमेजेस चेंज होती रहेंगी। वन प्लस की जितनी इमेजेस रहते हैं ना, वो चेंज होती हैं। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो मूवी कॉलम है ना, इसका हम साइज देंगे। तो साइज विल बी 12, हो जाए भाई। ओके, सो यू कैन सी हमारे पास मूवीज़ की इमेजेस हैं, एंड उसका ड्यूरेशन है, रिलीज डेट है, एंड उसका एमडी रेटिंग है। ओके, इफ़ यू वांट यहाँ पे आप स्टार भी यूज कर सकते हो एमडी के लिए, बट मैं अभी के लिए तो नहीं करने वाला। सो वी हैव इमेजेस। ओके, 3, 6, 9, 10। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो प्रीवियस है नेक्स्ट ऑप्शन, अभी अभी भी वो है, व्हाट, डिसेबल्ड है। ओके, तो अगर इस ये इनेबल कब होगा, जब हमारे पास 10+ डेटा रहेंगे। सो अभी अगर मैं यहाँ पे एक और डेटा ऐड करता हूँ, डेटा को मैं बस डुप्लीकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी हमारे पास 10 से 11 डेटा हो गए। ओके, तो अभी वो जो रहेगा ना, यू कैन सी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन पे हमारा नेक्स्ट इमेज दिख रहा है। ओके, तो यू कैन सी प्रीवियस एंड नेक्स्ट ये ऑन हो गया। सो 10+ डेटा रहते हैं तभी ये डिसेबल होता है, लाइक इनेबल होता है। तो वी हैव दिस इमेज एंड वी हैव दिस नंबर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा नंबर है उसका लेंथ इसको दे देता हूँ। ठीक है, ये जो लेंथ है ना, व्हाट आई विल डू, मूवी डॉट मूवी डॉट लेंथ। ओके, तो बेसिकली हम चैट, जब हम बैकेंड से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो उस टाइम भी हम ऐसे ही डेटा को लाएंगे एंड यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सो यू कैन सी वी हैव ऐड मोर। तो दिस बटन एंड दिस बटन इज नॉट लुकिंग गुड। ओके, तो व्हाट आई विल डू, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ इस कलर से और समथिंग एल्स। ओके, हमारा जो रिडायरेक्ट बटन है इसमें क्लास नेम पास किए हैं, एंड इसका जो बीजी होगा वो होगा इंडिगो, इंडिगो 500। ओके, ओके, सो इंडिगो 500। ओके, नाउ इट इज़ गुड। एंड इसका होवर इफेक्ट भी अगर आप चाहो तो लेट मी डू फॉर यू। तो बिजली इंडिगो, एंड आपको अगर इसका ना कोई भी पैलेट क्रिएट करना होगा ना, तो जस्ट राइट दैट कलर एंड डिवाइड बाई 40। ओके, 40, 50, 60 यानी कि, तो ये क्या करेगा ना, उसका एक लाइट वेट पैलेट क्रिएट करेगा। कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया, तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वो डार्क होता जाएगा। मैं 100 पे ले जाता हूँ, 60 पे ले जाता हूँ। जैसे तो हमारे पास ये होवर इफेक्ट भी आ गया, एंड मूवीज़ है, वी हैव 11 मूवीज़ राइट नाउ, एंड हमारा डेटा टेबल भी रेडी है। सो व्हाट आई नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, हम ये जो हमारा जो एड मूवी का जो ये है ना पेज, हम इसका फॉर्म क्रिएट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट पार्ट।
तो अभी मैं यहाँ पे एक रूट क्रिएट करूंगा जो होगा मूवी स्लैश क्रिएट स्लैश एनीथिंग। ओके, सो हियर वी विल राइट आईडी, बिकॉज हम ये एडिट के लिए भी वही सेम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो व्हाट आई विल डू, वी हैव दिस मूवी एंड व्हाट, ओके या, तो हमें मेन डॉट टी एस एक्स में जाना है। ओके, यू कैन सी अभी मुझे जो है ना, इट इज़ ए चिल्ड्रन ऑफ दिस वन, दिस स्लैश एंड इसके बाद मूवीज एंड आईडी। अभी मुझे चाहिए मूवी स्लैश क्रिएट एंड उसके बाद ओके एनीथिंग। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन मोर पाथ। तो यहाँ पे ओके, सो जस्ट क्रिएट वन मोर पाथ, पाथ विल बी स्लैश मूवी स्लैश क्रिएट स्लैश न्यू। ओके, सो मैं यहाँ पे आईडी रहेगा, मैं यहाँ पे आईडी किस लिए दे रहा हूँ मैं बताता हूँ। एंड एलिमेंट अभी के लिए हमारा मूवी फॉर्म रहेगा, बट वो फॉर्म मैंने क्रिएट नहीं किया अभी, तो जस्ट राइट मूवी फॉर्म। ओके, एंड हम इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पे, इस मूवी से फोल्डर में हम इस यहाँ पे क्रिएट करेंगे मूवी फॉर्म। ओके, मूवी फॉर्म एंड मूवी फॉर्म डॉट टी एस एक्स। ओके, तो लेट मी क्रिएट आर एफ। तो अगर आपको लाइक इस तरह सेकेंडों में कंपोनेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए एक एक्सटेंशन है, जस्ट इंस्टॉल दिस वन E7, yeah, this one ES7 plus, so you this one you can install this one, and it can help you in very thing like component create करना and other more thing। यूजुअली मैं इसका यूज़ करता हूँ कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए। तो यू जस्ट नीड टू टाइप RAFC फॉर like default, not for default like exporting like this। एंड अगर आप RAFC यूज़ करते हो लाइक RAFC की एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट देगा। ओके, ये अंतर है इसमें। तो हम ये मूवी फॉर्म को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, ना अगर मैं वहाँ पे जाऊँ ना, ऐड न्यू, यू कैन सी वी है मूवी फॉर्म। ओके, सॉरी, ओके, स्प्लिट कर दिया क्या। ओके, यू कैन सी वी है मूवी फॉर्म। तो बेसिकली ये मूवी फॉर्म जो क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे इसकी मूवी फॉर्म को ये क्रिएट करेंगे, बट यू कैन सी ये जो है डैशबोर्ड की हमारा जो फॉर्म है ना वो यहाँ पे हमें दिखाना है, ताकि ये पार्ट यहाँ पे रहे ये। तो डैशबोर्ड स्लैश समथिंग जो आ रहा है ना, देयर इज आवर डैशबोर्ड, या सो मुझे इसके अंदर ही क्रिएट करना है। तो ये जो पार्ट है ना मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, प्रोलेक्स एंड वी हैव चिल्ड्रन, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो बेसिकली स्लैश डैशबोर्ड एंड स्लैश पे ये रहेगा, एंड इसका चिल्ड्रन जो रहेगा ये रहेगा। ओके, सो हमें यहाँ पे चिल्ड्रन क्रिएट करना है। तो बेसिकली ये स्लैश डैशबोर्ड एंड इसका जो इंडेक्स पार्ट है वो ये है डैशबोर्ड मूवी पेज, एंड इसके बाद जो बनेंगे ना वो ये होंगे, तो स्लैश मूवी स्लैश क्रिएट स्लैश आईडी। सो बेसिकली ये हम यहाँ पे ही एक्सेस कर पाएंगे। स्लैश हुआ, ओके, देयर इज सम इशू, लेट मी सी कंसोल, या सो ये पाथ का है। बेसिकली हमें डैशबोर्ड से पूरा पाथ ही लिखना पड़ेगा ना। सो ये डैशबोर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो डैशबोर्ड डैशबोर्ड स्लैश मूवी स्लैश क्रिएट, ओके, एंड देन आईडी। तो अभी आप यहाँ पे जाओगे तो यू कैन सी हमें 404 मिलेगा, क्योंकि हमें जाना है यहाँ पे डैशबोर्ड भी रहना चाहिए। सो डैशबोर्ड स्लैश मूवी, ओके, डैशबोर्ड स्लैश मूवी स्लैश क्रिएट न्यू। ओके, लेट मी सी व्हाट इशू वी हैव मूवी फॉर्म दैट, सॉरी, स्लैश डैशबोर्ड स्लैश एंड वी हैव, okay, here passing here also the problem e slash dashboard we have this, okay, I need dashboard also। Okay, let me see why it is not showing, it should show like this। so अभी मैं डिबगिंग करने के लिए बताता हूँ आपको कैसे आप डिबगिंग कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे जाओ, रिएक्ट राउटर पे जाओ एंड वहाँ पे सर्च करो कि लाइक ये कैसे वर्क करेगा डैशबोर्ड स्लैश मूवी स्लैश क्रिएट स्लैश न्यू पर। ओके,
why it is not working. Like you can see we have this slash dashboard form and उसका जो इंडेक्स ये होगा, इंडेक्स इज ट्रू। तो बेसिकली ये इंडेक्स ट्रू कर, वी डोंट नीड पास, आई एम फॉरवर्डिंग समथिंग। तो बेसिकली ये जो है इसका इंडेक्स है, स्लैश डैशबोर्ड पे हमें ये वाला पेज दिखाना है, मूवी मूवी पेज। ओके, मूवी पेज के पास क्या है, मूवी पेज है, ओके ओके ओके, yeah, so basically there is one little bit correction, so why it was not showing। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से ये चिल्ड्रन यहाँ पे नहीं रहेगा, बेसिकली ये डैशबोर्ड स्लैश हमें करना है ना, तो इसका ये चिल्ड्रन सिबलिंग यहाँ पे रहेगा। ओके, तो हमें इसके अंदर चिल्ड्रन नहीं पास करना, सो जस्ट कंट्रोल एक्स एंड पेस्ट इट हियर। ओके, एंड ये जो चिल्ड्रन रहेगा इसको हटा देना है एंड हम नॉर्मल क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सो अभी ये काम करेगा। सो बेसिकली ये कैसा है ना, स्लैश डैशबोर्ड एंड ये जो है उसका इंडेक्स हो गया। ओके, एंड उसके बाद स्लैश मूवी स्लैश क्रिएट एंड दिस वन, ये एक नया पाथ क्रिएट हो जाएगा जो इसका जो ये है ना डैशबोर्ड पेज, तो इस लेआउट को वो फॉलो करेगा। ओके, तो हमारा मेन डॉट टी एस एक्स जो फाइल है ना, वेयर इट इज, तो जस्ट मेक लिटिल बिट करेक्शन हियर। ओके, तो अभी ऐसे लिखो एंड नाउ कम टू द, जस्ट कम टू द ईयर। ओके, यू कैन सी अभी ये हमारा वो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, हम यहाँ पे अपना मूवी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो डैशबोर्ड पे क्या होगा, सो लेट मी गो बैक, तो स्लैश डैशबोर्ड जो रहेगा वो हमारा ये मूवीज़ का ये बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा। एंड अगर हम ऐड न्यू पे जाते हैं तो ओके, तो हियर व्हाट आई विल नीड टू डू, हमें जो हमारा यूआरएल हमने जो पास किया था यहाँ पे उसको थोड़ा सा चेंज करना है। सॉरी, तो ऐड मूवी जस्ट टाइप हियर डैश बोर्ड। ओके, डैश बोर्ड स्लैश स्लैश ऑल्सो। तो अभी आप अगर उसको एक्सेस करने का ट्राई करोगे ना, तो उसी पेज को खोलेगा। ठीक है, सी हम इस पेज पे, अभी मैं इसके मूवीज़ का जो फॉर्म है वो फॉर्म क्रिएट करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस मूवी फॉर्म। ओके, सो मूवी फॉर्म को इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं इसका स्कीमा क्रिएट करूँगा जैसे हमने लॉगिन फॉर्म में किया था। तो जस्ट कम इनटू द स्कीमा फोल्डर एंड हम यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करेंगे मूवी फॉर्म। ओके, मूवी मूवी फॉर्म डॉट स्कीमा डॉट टी एस। ओके, so let me show you the name। तो यू कैन सी मूवी फॉर्म डॉट स्कीमा डॉट टी एस। तो हम इस नेम का फाइल क्रिएट कर लेंगे एंड हम इसमें जो हमारा फॉर्म है उसकी स्कीमा क्रिएट करेंगे जैसे हमने लॉगिन पेज में किया था। तो जस्ट राइट कॉन्स मूवी फॉर्म स्कीमा एंड जेड डॉट। ओके, सो लेट्स import, फर्स्ट import एवरीथिंग एज जेड फ्रॉम जॉड। ओके, तो बेसिकली इसके जितने भी फंक्शन आएंगे वो एज ए ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे एंड हम फिर उसके मेथड को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, सो जेड डॉट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इसके अंदर तो पहला जो होगा वो होगा इसका नेम। ओके, सो मूवी नेम हमें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इट विल ऑलवेज जेड डॉट स्ट्रिंग एंड इसका जो मिनिमम मूवी नेम होगा ना, व्हाट वी कैन डू, मिनिमम थ्री थ्री डिजिट। मूवी नेम मिनिमम थ्री डिजिट लेंगे एंड अगर उस पर कुछ भी अगर लाइक अगर वो थ्री डिजिट से कम हुआ, ओके, सो ये एरर हम इसको लिख देंगे मूवी, और यू कैन राइट नेम ओनली। सो नेम कैन नॉट बी लेस देन थ्री। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला लाइक नेम एंड उसके बाद नेम के बाद हमारे पास आएगा इमेज का यूआरएल, इमेज यूआरएल। ओके, एंड देन इमेज यूआरएल एंड बाद नेम इमेज यूआरएल description also you can want to put description। okay, let's write description here, description description and just copy this part, control C control V and remove this one। so description will be optional। okay, you want to write or write। okay, so मैं यहाँ पे लिख दूंगा optional। तो बेसिकली description can be optional। तो ओके, इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल तो हमें चाहिए तो रिक्वायर्ड रहेगा। सो रिक्वायर्ड करने के लिए मिनिमम वन, तो इमेज यूआरएल, तो इमेज यूआरएल। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, व्हाट विल डू, विल राइट
image is required. Okay, required. So we have name, image URL, description, IMD rating. Okay, IMD rating, एंड इसका जो टाइप होगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ही होगा, एंड ये भी रिक्वायर्ड होगा, सो लाइट मीन, एंड अगर वो राइट नहीं करता तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेटिंग इज रिक्वायर्ड. ओके, so we have rating, we have images. Let me see what we need to add more. Just come in types. Okay, so release date and duration. Okay, sorry, so release date. Okay, so just copy 2 times, right here, release date, and here also what, release date, duration. Okay, duration. So we have release date and duration. So date will be the type of okay, हम यहाँ string पास करेंगे. Okay, don't worry. डेट को भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे, ड्यूरेशन भी स्ट्रिंग रहेगा. सो एवरीथिंग इज स्ट्रिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसका टाइप भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे. ओके, सो हम इस टाइप को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ करने वाले हैं. सो जस्ट टाइप एक्सपोर्ट टाइप, एंड टाइप विल बी मूवी फॉर्म स्कीमा टाइप इक्वल टू जेड डॉट इन्फर, एंड हम यहाँ पे उसका टाइप ऑफ दे देंगे बेसिकली मूवी फॉर्म स्कीमा. सो उसकी जो भी टाइप रहेगी वो इसमें आ जाएंगे, एंड ये टाइप हम यहाँ पे इंपोर्ट कर दे रहे हैं. ओके, so we have movie form. Okay, what I need to do, I need to create this movie form. So basically just start implementing this part. Okay, so what I will do, like what I have planned here, what I was thinking to do, we will implement like here one form that will have this all values. So हमारे पास ज़्यादा fields हैं नहीं. Okay, so let me div, and उसके बाद div sorry, तो वी हैव कार्ड. ओके, सो हम यहाँ पे कार्ड ही यूज़ करेंगे. ओके, डोंट वरी. तो कार्ड, एंड हम कार्ड को इंपोर्ट कर लेंगे. मेक श्योर आप कंपोनेंट स्लैश यूआई कार्ड से इंपोर्ट करो. ओके, एंड कार्ड का जो टाइटल होगा वो होगा क्रिएट मूवी. सो कार्ड टाइटल, टाइटल विल बी इन द हेडर. ओके, तो पहले हेडर एंड उसके अंदर कार्ड टाइटल, कार्ड टाइटल, टाइटल विल बी क्रिएट मूवी, और what we can, okay, create movie. Okay, you can write add movie also or anything. I will write create movie, and this card content. तो बेसिकली ये हम यहाँ पे इसके बॉडी को क्रिएट करेंगे, एंड जो ये कार्ड कंटेंट होगा वो होगा हमारा फॉर्म. ओके, तो जस्ट कम हियर, जो हमने यहाँ पे लॉगिन के लिए जो फॉर्म क्रिएट किया था ना, मैं उसको ही कॉपी करूँगा, हम उसके बस वो चेंज कर देंगे. ओके, उसकी केस को चेंज करेंगे हम. सो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं इसको कॉपी कर रहा. in auth section you can see we have login and we have registered. So come in register and just copy this content form. Okay, ये पार्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. तो बेसिकली ये एरर देगा अभी के लिए. So you can see okay, what we don't need this one. Okay, we don't also, okay, so we don't need we don't need to copy that part. We need to copy this register form. So just come back here, रजिस्टर, एंड हम यहाँ से रजिस्टर फॉर्म को कॉपी करेंगे. वी डोंट नीड दैट पार्ट. तो रजिस्टर फॉर्म. ओके, तो जस्ट कॉपी दिस होल फॉर्म, हम इसको चेंज कर देंगे. ओके, तो कम ही so you can see what we need to do, we need to just import everything. Okay, let me import everything. Field, form type, item, and controls. Okay, so we need control, input, and last one message. Okay, you can see I have imported this part, but we need to import what else, submit button. Yeah, very important, submit button. तो हम इसका टाइप भी चेंज करेंगे. ओके, डोंट वरी. ओके, सो अभी हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे. जो हमारा फॉर्म होगा वो रिएक्ट लाइक फॉर्म इज इक्वल टू यूज हुक रिएक्ट से जो आएगा. सो यूज फॉर्म रिएक्ट हुक फॉर्म से
एंड हम यहाँ पे अपनी टाइप पास कर देंगे। इसका जो टाइप होगा वो होगा मूवी स्कीमा टाइप। ओके, एंड इसके अंदर हम दो की पास करते हैं। वन इज रिजॉल्वर। सो रिजॉल्वर बेसिकली जॉर्ड रिजॉल्वर होगा जो स्कीमा को हमेशा इटरेट करेगा और देखेगा कि ये स्कीमा जो है वैलिड है और नहीं है। ओके, तो जॉर्ड रिजॉल्वर एंड पास आवर मूवी स्कीमा हियर, मूवी फॉर्म स्कीमा। ओके, एंड सेकेंड हमें इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी होगी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वी कैन पास और नॉट, बट मैं यहाँ पास करूँगा। तो नेम विल बी एम्प्टी फॉर description also, control page, sorry, image URL, this will be also empty. Name, description, image URL, and what else? Just over here, IMD rating, and what else? Release date. So let's count 3, 6, we have 3, 5. So one is left. Okay, one image name. Okay, so duration. Sorry. You can see we have this form and हमने okay on submit function. Okay, on मैं यहाँ लिखूँगा on create movie। इस अभी के लिए तो हम यहाँ पे कुछ डेटा को ही बस डिस्प्ले करा सकते हैं बिकॉज वी डोंट हैव APIs। जस्ट टाइप डेटा, एंड डेटा का जो टाइप होगा वो होगा मूवी स्कीमा टाइप। ओके, तो ये यहाँ से ही पास हो जाएगा डेटा, जो भी फॉर्म का डेटा रहेगा ऑन क्रिएट। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, लेट मी फॉर्मेट इट। ये फॉर्मेट हो गया, तो ये जो डेटा है तो हम यहाँ से कंसोल लॉग कर सकते हैं, बाद में हम देखेंगे डेटा क्या आ रहा है। डेटा ओके, अभी हम यहाँ पे क्रिएट मूवी है एंड फुल नेम। ओके, सो फुल नेम विल बी नेम। ओके, ये तो सही है। ईमेल की जगह हम लिखेंगे what सर नेम, डिस्क्रिप्शन। ओके, सो डिस्क्रिप्शन विल बी हियर, डिस्क्रिप्शन हियर ऑल्सो। सो बेसिकली हमें उसको बस चेंज कर देना है जो हमने लॉगिन पेज पे किया था। सिंपल है, हम यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट को ले रहे हैं एंड उसमें अपना इंस्टेंट जो है रिएक्ट हुक फॉर्म का पास कर दे रहे हैं। इसका नेटिव फॉर्म फील्ड आ रही है, जो ये सेट सीन की फॉर्म फील्ड है उसका नेम देना है, वट एवर द नेम वी हैव इन आवर स्कीमास। एंड व्हाट एल्स, यू नीड टू जस्ट रिटर्न ए JSX। ओके, द फॉर्म टाइप, हम यहाँ से फॉर्म टाइप को रिटर्न कर रहे हैं with the label and the one controller which is input. Okay, and this form message will help us to display the error message. Okay, so we have description here, we have input. Okay, ये डिस्क्रिप्शन के लिए मैं क्या करूँगा, इनपुट की जगह हम लोग टेक्स्ट एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट एरिया मैं नॉर्मल वाला ही यूज़ करूँगा, जस्ट पास डॉट डॉट। सो बेसिकली टेक्स्ट एरिया का हम इसमें जो भी इसका रोज होगा ना, रोज लाइक 5 रोज। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पे दे देंगे एंड इसको थोड़ा सा मैं ब्यूटीफुल भी करूँगा लाइक CSS से। सो वी हैव डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन के बाद हमारा आएगा व्हाट इमेज URL। ओके, तो हम यहाँ पे नहीं, इमेज URL में यहाँ नहीं रखूँगा, हम लोग उसको सबसे नीचे रखेंगे, IMD रेटिंग। ओके, IMD change this one also. This is required, yeah, this is required, and this is confirm form field, we don't need confirm form field, यहाँ पे यूज़ करेंगे। व्हाट एल्स, IMD रेटिंग रिलीज डेट। ओके, रिलीज डेट यहाँ पे होगा रिलीज डेट। ओके, तो बेसिकली रिलीज डेट जो मूवी हमारी रिलीज होगी वो डेट हम यहाँ से ले लेंगे एज ए स्ट्रिंग, बट हम पास कर रहे होंगे। सो मैं क्या यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, यू कैन सी हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो रहा है बट अभी ये अधूरा है। जस्ट गो ऑन सेट सीन पे हम यहाँ से कैलेंडर को पिक करेंगे। लाइक अगर सो यू कैन सी वी हैव कैलेंडर, तो जो भी डेट रहेगी हम यहाँ से पिकअप कर लेंगे। ओके, डेट सेट मोड सिंगल। ओके, एंड यू कैन गेट द डेट लाइक दिस, selected date and this, and on select set date. Okay, so what we will do, we will use this one. Okay, yeah, we can use this one. So we have date
और एल्स व्हाट आई विल डू, हम लोग इंस्टेड ऑफ लाइक हम डेट का एक ही जगह यूज़ करने वाले हैं बस कैलेंडर के लिए, तो हम इसका टाइप भी यहाँ पे डेट दे सकते हैं, टाइप डेट। ओके, सो वी हैव रिलीज डेट एंड लेट मी सी हाउ इट इज लुकिंग। तो यू कैन सी हमारे पास डेट है, हम यहाँ से उसके डेट को क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो हमें कैलेंडर की ज़रूरत नहीं है, लाइक अगर एक ही जगह यूज़ करना है तो उस कंपोनेंट को हम क्यों ही, वाई वी नीड दैट। ओके, so here release date, release date, and मैं what I will do, यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर भी डाल दूंगा, प्लेस होल्डर लाइक 9.9 रेटिंग। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन, तो प्लेस होल्डर राइट योर डिस्क्रिप्शन हियर, राइट मूवी डिस्क्रिप्शन। तो बेसिकली ये मैं यूएक्स के लिए कर रहा, ताकि यूज़र को पता चले क्या लिखना है यहाँ पे। एंड क्लास नेम बॉर्डर, बॉर्डर विल बी म्यूटेड फोरग्राउंड। ओके, यू कैन सी वी हैव दिस बॉर्डर एंड मुझे इसमें थोड़ा सा पैडिंग देना है, पैडिंग विल बी P2। सो यू कैन सी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, इसका जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं चेंज करूँगा इसको, बॉर्डर प्लेट, एंड हम थोड़ा सा इसको 400। तो बेसिकली इसका बॉर्डर पे हम इसको कोई भी एक कलर दे सकते हैं, मैं चूज 200। ओके, सो यू कैन सी वी हैव दिस कलर एंड इसका। ओके, सो वी हैव फुल नेम, डिस्क्रिप्शन, एमडी रेटिंग एंड रिलीज डेट। तो जो ये एमडी रेटिंग है, रिलीज डेट है, मैं इस एक रो में करूँगा। इसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक हम डिव डिव क्रिएट करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये इसका पेरेंट होगा एंड पेरेंट से ही हम इन दोनों चाइल्ड को फ्लैक्स कर देंगे। ओके, क्लास नेम फ्लैक्स, जस्टिफाई नॉट आइटम सेंटर, आइटम सेंटर, एंड हम इसको कुछ तो गैप दे देंगे। ओके, गैप इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। यू कैन सी हमारे पास ये है, एंड हमें क्या करना है, इन दोनों को फ्लैक्स कर देना है वहाँ तक, राइट हियर। तो बेसिकली क्लास नेम हमारा यहाँ पे फ्लैक्स 1 होगा, ताकि ये जो बचे हुए विद हैं उसको ले सके। ओके, फुल विद के लिए मैं कर रहा है ऐसा 1, एंड इसके बीच में हम थोड़ा सा गैप देंगे, गैप ऑफ x(4). ओके, you can see we have this in the one same line. Okay, so now we have create movie new full form, and थोड़ा सा we need sorry, padding also, padding of 4। yeah, you can see we have description, we have full name and IMD rating is that। now हमें वो इंटरफेस क्रिएट करना होगा जहाँ पे यूज़र कैन लाइक अपलोड द इमेज। ओके, तो उसके लिए आई विल क्रिएट हियर, just copy this part, you'll see, and paste it here। okay, sorry। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं ना, हमारा ये जो कंट्रोलर होगा, जस्ट रिमूव दिस वन एंड टाइप विल बी फाइल। ओके, so let's see how it's looking, so you can see we have this interface, but I will change it। okay, don't worry। so what I will do, I will create one label। तो बेसिकली हम लेबल के अंदर ही उसको कर सकते हैं। तो HTML फॉर, सो इसकी जो आईडी होगी ना, हम वो सेम देंगे ताकि हम इसके क्लिक पे इसको ट्रिगर कर सकें। तो फाइल अपलोड। ओके, सो ये जो HTML फॉर है इसमें हम सेम आईडी पास कर देंगे, अपलोड, एंड हम इसका जो क्लास नेम है हम इसको हिडन कर देंगे। ओके, तो बेसिकली हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं कस्टम यूआई फॉर लाइक क्रिएटिंग एनी इमेज, अपलोडिंग एनी इमेज। तो अभी देखो, अभी मैं अगर यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिख दिया, अगर इसके भी क्लिक करूँगा मैं, वो ओपन होगा। ओके, व्हाट हैपन। ओके, ओके, अंडरस्टूड। इसको चाहिए एक ही कंपोनेंट, जो फॉर्म कंट्रोल होता है ना, इसका एक ही कंपोनेंट होना, लाइक चिल्ड्रन होना चाहिए, तो हम इसको डिव में रैप कर देंगे, डिव लाइक दिस। नाउ यू कैन, मैं अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ फिर भी वो ऊपर हो रहा है, तो हमें बस अपलोड का जो डिज़ाइन है उसको चेंज करना है। ओके, सो
जस्ट राइट विथ फुल। एंड इसका जो बॉर्डर होगा ना, बॉर्डर 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 विल बी वी कॉल बॉर्डर डैश। ओके, सो बॉर्डर डैश होगा इसका। ओके, यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर विद नहीं दिया, आई थिंक यू कैन सी वी हैव दिस, बट मैं इसका थोड़ा सा, हमारा जो बॉर्डर है ना, हम इसको टू करते हैं। कैन सी वी कैन सी नाउ। ओके, एंड इसको मैं क्या करूँगा, इसको फ्लैक्स कर दूंगा, जस्टिफाई इसको, justify center item center. Okay, and we will put some padding of p4 16 pixel padding. You can see we have this upload here. now मैं यहाँ पे एक आइकन यूज करूँगा, फाइल फाइल एडिट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज इट। सॉरी, या सो हम यहाँ पे कोई भी एक रिलेवेंट लाइक कोई भी एक आइकन यूज करेंगे। सो जस्ट गो एंड लूसिड रिएक्ट, एंड हम यहाँ से सर्च कर देंगे फाइल, तो फाइल रिलेटेड यू कैन सी क्लाउड अपलोड, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो आई विल यूज दिस वन, क्लाउड अपलोड। ओके, हम हियर क्लाउड क्लाउड अपलोड, या ये वाला हम यूज कर लेंगे। ओके, क्लाउड अपलोड, एंड जस्ट प्रेस शिफ्ट अल्ट ओ, जो हमारा अनयूज्ड था ना वो फाइल, वो हट जाएगा। ओके, अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे, व्हाट वी विल डू। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपलोड मूवी इमेज। या अपलोड मूवी इमेज, एंड थोड़ा सा मिलाने के लिए व्हाट विल, ओके, सेंटर। ओके, हम इसको डिबग करेंगे, लाइक वाई इट इज नॉट गोइंग सेंटर। वी हैव div svg, देन svg के अंदर ही ये है। ओके, सॉरी, तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा ना, इसको मैं h1 में पुट करता हूँ। ओके, तो अभी के लिए टेक्स्ट सेंटर पे कुछ नहीं हो रहा, सो h1, एंड हम यहाँ पे करेंगे फ्लैग्स। ओके, तो फ्लैग्स ऑफ कॉलम, फ्लैग्स कॉल, एंड हमारा जो इसका जस्टिफाई होगा ना, उसको सेंटर कर देंगे। ओके, अगेन इट नॉट वर्किंग। ओके, व्हाट, लेट मी पुट इट दिस वन आल्सो इन h1, इसकी बेस पे उसको अगर हम सेंटर कर सकें तो। ओके, व्हाट्स आई थिंक वेद का इशू है, वेद इसको फुल नहीं मिल रही। ओके, लेट मी debug here why it is not working. We have text center is not a text, we have label को हमने justify center, okay, sorry, okay, let me see why it is a little bit CSS issue है, तो हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। लोड इमेज नहीं करेंगे, एक्स एक्स, तो बेसिकली हम इसको फ्लैक्स करेंगे, जस्टिफाई को सेंटर कर देंगे, यू कैन सी ये इजिली यहाँ पे हो गया। ओके, अभी मैं इसको थोड़ा सा लाइक इसका कलर में चेंज करूँगा, थोड़ा सा वो अलग लगे क्लास में। टेक्स्ट विल बी म्यूटेड फोरग्राउंड। सो यू कैन सी हमारा ये जो व्हाट वी कॉल फॉर्म जो है हमारा मूवी क्रिएट मूवी फॉर्म, ये हमारा रेडी है। व्हाट आई नीड टू जस्ट आई नीड टू व्हाट, ये जो रजिस्टर है हम यहाँ पे क्रिएट लिखेंगे, and वो रजिस्टर को मैं करूँगा क्रिएट क्रिएट। ओके, क्रिएट
या ये हो जाएगा क्रिएट, एंड हमें एक कैंसिल बटन भी यहाँ पे देना है जो इसको गो बैक लाइक मेन पेज पर ले जा सके। ओके, तो इसको मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं इसको रैप कर दूंगा डेव से, ताकि मैं इसमें एक और नई बटन यूज़ कर सकूँ। सो अगर आपको कोई टेक्स्ट को ऊपर ले जाना है, जस्ट प्रेस अल्ट एंड एरो ऊपर, एरो बटन से वो ऊपर चला जाएगा। एंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रीडायरेक्ट बटन जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था, रीडायरेक्ट। ओके, एंड इसका यूआरएल जो होगा, यूआरएल वो होगा स्लैश डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड, एंड हम यहाँ पे लिख देंगे कैंसिल। एंड ये जो हमारा सबमिट बटन है ना, इसको भी मुझे सही करना होगा। तो वी डोंट हैव फॉर दिस। तो बेसिकली अभी दोनों जो है वो रेड कलर में ही है। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ, इसके बाद उसका कलर चेंज करूँगा। फ्लैक्स जस्टिफाई एंड गैप विल बी गैप ऑफ 4 एंड आइटम। ओके, इसका जो विड्थ है वो बहुत ही ज़्यादा। तो हम सबमिट फॉर्म में, सबमिट बटन में आते हैं, इसका विड्थ जो है फुल है। ओके, ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइक क्लास नेम भी पास करूँगा, ताकि हम इसको थोड़ा स्टाइलिश भी कर सकें। तो इसको मैं अभी के लिए ऑप्शनल रखूँगा, क्योंकि हमने इसको और जगह यूज़ किया हुआ है, तो उसका वो लाइक एरर थ्रो ना करे, इसके लिए ये ऑप्शनल होगा। ओके, एंड जस्ट पास क्लास नेम हियर। हमें कहीं कहीं पर इसको ओवर करना होगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी एन फंक्शन का यूज़ करूँगा। सी एन बेसिकली ये टेलविन का एक फंक्शन, यू कैन से, ये जो है लाइक इसका यूज़ कर रहा है, तो वो क्या करता है, उसको मर्ज कर देता है, जो सी एस एस होती है हमारे क्लास नेम को मर्ज करता है। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे कॉमा देके क्लास नेम डाल देंगे, और इसको ये इसमें मर्ज करेगा और ओवरराइड भी करता है। अगर मैच हुआ तो ओवरराइड, नहीं तो कोड कर देगा वहाँ पर। तो लेट्स गो इनटू द मूवी फॉर्म, एंड हम यहाँ पे इसका क्लास नेम करेंगे। तो विद अभी के लिए मैं इसको देता हूँ 120 पिक्सल। you can see we have this create and cancel को भी सेम विथ देता हूँ मैं। तो क्लास में 120। ओके, एंड इसका कलर बस चेंज करना है, इनका सी कैपिटल होगा। एंड कैंसिल के लिए तो रेड सही है। ओके, बट क्रिएट के लिए आई विल यूज़ बीजी। हम यहाँ पे इंडिगो यूज़ करेंगे, इंडिगो 500, एंड बी ऑन होवर, होवर पे ऑल्सो बीजी इंडिगो। तो आप इसको कलर कुछ भी अपने पसंदीदा अनुसार, यू कैन वट एवर यू लाइक यू कैन गिव इट। and I am writing. Okay, you can see we have create and we have cancel. You can see for cancel coming here. तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करने जाऊँ, तो यू कैन सी जो जो हमारे रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आ गए। ओके, रेटिंग, रेटिंग इट शुड बी फाइल। ओके, तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे रहेगा इमेज यू आर। तो कीज मैच होनी चाहिए। यू कैन सी इमेज इज रिक्वायर्ड। तो अगर हम यहाँ पे एक इमेज देंगे, एनी इमेज, अगर मैं क्रिएट, तो यू कैन सी ये रिलीज डेट एंड ये सब जो 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 फील्ड रहेंगे उसके एरर्स आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन हमारा, ओके लेट मी रिमूव दिस पार्ट। सो डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है केवल, और सब रिक्वायर्ड है। या यू कैन सी, तो नाउ वी ओके, आई नीड टू मेक इट लिटिल बिट बिग। सो अभी हमारा जो लाइक ये जो फॉर्म है वो तो ऑलमोस्ट रेडी है। ओके, नेक्स्ट, एंड इसका जो टेक्स्ट कलर होगा ना इंडिगो 900 होगा, फॉन्ट विल बी बोल्ड। okay, you can say create movie and full name is, name can be okay। so we have this create form, हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है, बट व्हाट आई नीड टू डू, लाइक ये देख रहे हो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये किस यूआरएल पे हम है। लेट मी फिक्स दिस वन अगेन, लाइक इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा। सो जस्ट गो इनटू साइड बार। ओके, तो जो हमारा साइड बार है ना, हम यहाँ पे एक लाइक हमारा जो पाथ होगा ना, हम उस पाथ को सर्च करेंगे। यूज पाथ नेम, वी डोंट हैव एनी पाथ। ओके, लेट मी सर्च, अगर हम इसका पाथ कैसे गेट कर सकते हैं। ओके, जो भी नहीं आता है, लाइक अगर आप कोई भी सिंटेक्स भूल रहे हो, सो डोंट हेजिटेट टू गूगल। ओके,
nobody can remember all the things. Okay, we are not a computer, we are a human. So हम बोल सकते हैं. So what I will do, how to get a path name in React. Okay. Okay, so it is saying location is this use location. Okay. Okay, so we will use this use location book जो है अपना रिएक्ट राउटर डॉम से. ओके, रिएक्ट राउटर से पहले ये रिएक्ट राउटर डॉम हुआ करता था जब मैं इसको यूज़ करता था, बट अभी ये रिएक्ट राउटर हो गया. ओके, यहाँ पे रिएक्ट राउटर. तो वी हैव लोकेशन, तो मैं इसको लोकेशन नहीं इसका देता हूँ पाथ. ओके, तो व्हाट आई विल डू, कॉन्स्ट इज एक्टिव, हम यहाँ पे एक फ्लैग सेट कर देंगे. डॉट इज इक्वल टू पाथ नेम डॉट इंक्लूड व्हाट डॉट इंक्लूड. अगर ये इंक्लूड करता है यूआरएल को मीन्स इट इज़ एक्टिव. ओके, सो जस्ट कंसोल लॉग. लेट हम यहाँ पे पहले कंसोल लॉग कर लेंगे. ओके, इज एक्टिव. तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसका लॉजिक में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर. गो इनटू कंसोल. ओके, हम तो इसने तो दिस इज द पाथ नेम एंड ओके दिस. ओके, तो फॉर मूवी हमें स्लैश मूवी की ज़रूरत ही नहीं, हम डैशबोर्ड पे रहेंगे. ओके, ओके, तो ऑन डैशबोर्ड sometime it is true, sometime it is false. Why? Okay, let me remove all this. अभी हम डैशबोर्ड पे हैं. ओके, लेट मी रिफ्रेश. so you can see. ओके, व्हाट आई विल डू, हमें इंस्टेड ऑफ इसको हम ये इसका पाथ को पहले वो करते हैं कि पाथ क्या आ रहा है, उसके बाद में लाइक देखूंगा क्या कौन सा लॉजिक इस पर अच्छा रहेगा. ओके, तो यू कैन सी हमारा जो पाथ आ रहा है वो स्लैश डैशबोर्ड आ रहा है पाथ नेम. ओके, सो पाथ नेम तो सही आ रहा है. वी हैव पाथ नेम एज डैशबोर्ड एंड हम अभी मूवी का जो डैशबोर्ड पाथ नेम. ओके, सो इट शुड वर्क यार. ओके, ओके, सो ये जो आ रहा ना लाइक. ओके, ओके, अंडरस्टूड. हमें इंक्लूड की नहीं ज़रूरत है. पाथ नेम इज इक्वल टू URL. ओके, अभी ये वर्क इज एक्टिव. नाउ यू कैन सी अगर मैं इसको रिफ्रेश कर बट इट शुड वर्क यार. let me log that one also. Path dot path name. Okay. Sorry. So we have this path name. You can see slash dashboard and it is showing it is false. Here slash dashboard it is true. What's problem? Trying. Something is wrong. You are getting path name equal to URL. Okay. Now. ओके, 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 नो इशू, नो इशू. वो जो फॉल्स दे रहा है ना वो इन सब के लिए दे रहा है. फॉर दिस तो फॉल्स है ना क्योंकि हम मैप कर रहे हैं, तो ये इज एक्टिव सही है. ओके, तो अभी क्या करना है, इसको हम cn फंक्शन में फिर से रैप करेंगे. cn एंड जस्ट रैप दिस एंड मैं यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर से करूँगा. ओके, इज एक्टिव. अगर ये एक्टिव है तो इसका जो बिजी होगा वो होगा इंडिगो. हाँ, बिजी विल बी इंडिगो 500. So let's see what's the ये रिफ्रेश. तो यू कैन सी ये की प्रॉप्स का इशू दे रहा है. बेसिकली हमने कहीं तो की. ओके, तो हमने यहाँ पे की नहीं पास की, ऑलवेज पास की. ओके, एक बोलना कि ओके. सो रिएक्ट फ्रेगमेंट का यहाँ पे मैं यूज़ बताता हूँ. कभी कभार इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि रिएक्ट फ्रेगमेंट का हम और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली अभी
हमारे पास ये साइड बार है, इसमें ये लिंक, क्योंकि ये नेट लाइक वो नहीं है ना, हमारा HTML टैग नहीं, तो ये कीज नहीं पास करने दे रहा। तो यू कैन डू, आप रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट टाइप फ्रेगमेंट एंड, सो बेसिकली फ्रेगमेंट क्या करता है ना, ये कोई एक्स्ट्रा डिव और कुछ नहीं क्रिएट करता है, ये जस्ट रैपर है। ओके, एंड हियर हम यहाँ पे तो कीज, यूनिक की को पास करने के लिए भी लिंक लेबल होगा। तो यूनिक की को भी पास करने के लिए हमें फ्रेगमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, तो इंटरव्यू कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। ओके, यू कैन रिफ्रेश, यू कैन सी हमारा ये मूवी है, एंड इसका जो कलर भी मुझे सही करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट विल बी वाइट एंड ऑन होवर इजी इंडिगो, इंडिगो एंड होवर पे हम क्या करेंगे, इंडिगो जो 500 है ना, इसको हम डिवाइड कर देंगे 70 से। ओके सॉरी, होवर मैंने होव लिखा था। तो यू कैन सी इन सब का जो है रेड होगा, एंड जो भी यहाँ पे हमने इसका वो क्रिएट नहीं किया ना, तो इसका भी बताता। तो अभी के लिए ये एक्टिव है। ओके, एंड एड मूवी, या दैट्स व्हाई आई वाज राइटिंग दिस पार्ट, बिकॉज यहाँ पे वो फिर नहीं होगा। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज़ इंक्लूड अगेन। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे भी इंक्लूड ही यूज़ करेंगे। दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग इंक्लूड, बिकॉज डैशबोर्ड जो है ना, कि जब चिल्ड्रंस आएंगे ना, तो हम डायरेक्ट मैच नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई वाज, यू कैन सी अभी ये यहाँ पे भी एक्टिव है, यहाँ पे भी एक्टिव है। ओके, एंड सेम वो इसके लिए भी काम करेगा, डोंट वरी। जब इम्पोर्ट क्रिएट कर रहे होंगे, तो वी हैव कैंसिल बटन, यहाँ पे आ गए क्रिएट। फॉर नाउ वी डोंट हैव API, सो लेट्स लीव इट। एंड आपको असाइनमेंट मुझे देना है, लाइक ये जो यू कैन सी इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा हो रहा है। सो लाइक गो थ्रू द कोड एंड सी वेयर वी आर डूइंग रॉन्ग। ओके, ये CSS का इशू है, डोंट वरी। तो बेसिकली हमारा जो मूवी पेज है वो क्रिएटेड है। ओके, नाउ वी नीड थिएटर ऑल्सो। थिएटर के लिए मैं क्या करूँगा ना, वट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस मूवी, एंड हम यहाँ थिएटर जहाँ जहाँ मूवी रहेगा वहाँ वहाँ थिएटर लिख देंगे। ओके, तो जस्ट कॉपी दिस पार्ट, कॉपी एंड पेस्ट इट इनटू डैशबोर्ड। ओके, पेस्ट हियर। ओके, एंड चेंज इट्स नेम। सो हम मूवी के लिए हम यहाँ पे थिएटर लिख देंगे। तो या सो बेसिकली अभी जो हमारे कॉलम्स है ना, थिएटर्स में हमें क्या चाहिए होगा, थिएटर्स का नेम एंड उसका लोकेशन। ओके, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ से हम सब चीज़ों को निकाल लेंगे, लाइक वी डोंट नीड दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट दिस टाइप, तो जस्ट रिमूव हियर ऑल्सो, एंड हम इसका टाइप क्रिएट करेंगे। ओके, तो जस्ट कम हियर इन द टाइप सेक्शन, एक्सपोर्ट थिएटर, टाइप थिएटर। ओके, टाइप थिएटर एंड इक्वल टू टाइप थिएटर, एंड थिएटर के पास होगा इसका नेम एंड व्हाट लोकेशन। ओके, सो बेसिकली हमें लोकेशन भी चाहिए होगा, एंड क्रिएटेड एट, तो कब ये क्रिएट हुआ है, लेट्स थिंक ऑल्सो। वी हैव थिएटर मूवी एंड ओके, सो हम ये थिएटर का यूज़ करेंगे वहाँ पे जो हमारा कॉलम हम क्रिएट कर रहे हैं थिएटर का। तो जस्ट राइट हियर थिएटर कॉलम, एंड कॉलम डेफ में हम पास कर देंगे अपना टाइप, जो हमने थिएटर का टाइप क्रिएट किया है। दिस, तो थिएटर के लिए हमें इमेज नेम हो गया, एंड कॉपी कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एरो डाउन 3 टाइम्स, नेम लोकेशन, let me call it address, not theater name. Okay, so instead of movie we will write theater name and location. Okay, location, and उसके बाद we will write created at, so कब create हुआ है, this header name will be also created at, okay. So let me create some dummy value for this also. So ChatGPT is here, we can write something.
तो हम चैट जीपीटी से डमी डेटा क्रिएट करवाएंगे। चैट जीपीटी जस्ट पेज दिस टाइप एंड वो उसका डेटा क्रिएट कर देगा। ओके, डोंट वरी, ओनली गिव मी 12 डेटा टाइप। तो बेसिकली ये हमें 12 डेटा दे देगा। ओके, कैन सी इट इज गिविंग, ये राइट लिख रहा है, सॉरी। So just copy this data and paste here. Okay, here I will show you. So no. Okay, so ये जो है ना हमारा इस डैशबोर्ड मूवी पेज। ओके, तो हमें इसको भी इसके मूवी के अंदर ही पास करना है। तो लेट मी कॉपी, कंट्रोल से, एंड हम इसको उठा के इसमें ड्यू में डाल देंगे। डोंट, ओके, एंड फर्स्ट, ओके, ये इशू नहीं है। बेसिकली ये क्या बोल रहा है ना कि हमें क्या करना चाहिए, जो डेटा है ना इसको कहीं भी लाइक कांस्टेंट करके रखना चाहिए। ये गुड प्रैक्टिस होती है। मैं अभी के लिए इसको वहाँ से ही उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स, जस्ट क्रिएट वन। ओके, वी हैव कांस्टेंट। ओके, वाई वी हैव मूवी कार्ड ना। ओके, सो जस्ट राइट हियर मूवी। तो बेसिकली ये जो मूवीज़ होंगी हम इसका यूज़ वहाँ पे दिखाने के लिए कर रहे हैं। या वी कैन, ओके, राइट नाउ वी विल यूज़ दिस वन, बट हम जब डैशबोर्ड लाइक बैकएंड क्रिएट करेंगे तो हम इसका यही हमारा फॉर्मेट रहेगा। जस्ट एंड कम इन डैशबोर्ड मूवी पेज, और हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे समवेयर फ्रॉम, या just double click, control space bar, and you can get this option to import. Okay, what's it? Let me see why it is the issue. Movie card prop is not assignable to type movie. Movies, passing movies here, movies column also. Then what's it? Movie card prop. Okay, let me see in column. I think I'm doing something wrong. We have movie. We have this movies. Movies is also the type of. Okay, sorry. We have same name. Okay, so what I will type, dummy movie. Okay, that is the issue. Okay, to import. Okay, yeah. तो हमें जो यहाँ पे डमी डमी मूवीज को इंपोर्ट करना था, तो डमी मूवीज कंट्रोल एस। बिकॉज हमारा जो मूव लाइक मूवी पेज है वो अभी भी रन करेगा इस मोड में से। हमारा डेटा है नहीं। ओके, सो सेम हम थिएटर के लिए भी करने वाले हैं। सो हमने वो कॉपी पेस्ट कर लिया है। लेट मी क्रिएट वन फोल्डर, थिएटर पेज। बेसिकली ये मेन पेज होगा थिएटर का, पेस्ट कर देंगे। विच वन, दिस वन। ओके, तो हमने ये कॉपी किया था ना डैशबोर्ड की कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंड इंस्टेड ऑफ दिस। एंड डेटा टेबल, ये सब इंपोर्ट्स भी निकाल दो, मैं बताता हूँ क्विक इंपोर्ट कैसे करना है। एंड डेटा टेबल, ओके, एंड व्हाट, हमारे पास थिएटर भी है ना, सी वी हैव थिएटर। ओके, कांस्टेंट में मुझे थिएटर भी पुट करना था, सॉरी मैं बोल गया। तो जस्ट थिएटर, या तो जो हमने वहाँ से चैट जीपीटी से कॉपी किया था, जस्ट पेज दैट थिएटर ही है। सॉरी, तो इसका नाम भी मैं डमी थिएटर ही दूंगा, डमी। ओके, वी हैव डमी थिएटर्स हियर, एंड हमारे पास ये थिएटर पेज है। सो हम यहाँ पे मूवी लेंथ की जगह हमें डमी थिएटर्स का लेंथ जस्ट पास डमी थिएटर एंड थिएटर कॉलम। तो हमने कॉलम आई थिंक क्रिएट किया हुआ है, भैया।
तो एंड ऑल्सो हियर ऑल्सो, जहाँ जहाँ मूवी वहाँ वहाँ थिएटर लिख दो, दैट इज ओके। तो थिएटर इज डैशबोर्ड मूवी पेज विल बी, सॉरी, डैशबोर्ड मूवी की जगह just write theater. We have theater page movie, no no, this will be the, जहाँ जहाँ मूवी है वहाँ वहाँ हमने थिएटर कर दिया। हियर ऑल्सो। तो बेसिकली तो हम अभी थिएटर पेज को लाइक ये जो हमारा थिएटर पेज है ना, डैशबोर्ड थिएटर पेज, इसको हम स्लैश डैशबोर्ड स्लैश थिएटर पे रन करेंगे, ओके, डिस्प्ले करेंगे, रेंडर करेंगे। मेन डॉट टी एस एक्स, वी हैव मेन डॉट टी एस एक्स एंड वी हैव दिस स्लैश डैशबोर्ड एंड इसके जो चिल्ड्रेन होगा ना वो होगा, तो ये होगा स्लैश डैशबोर्ड स्लैश थिएटर, ओके। तो बेसिकली जो मूवी वाला पेज था वो इंडेक्स था, तो हमें यहाँ पे स्लैश मूवी नहीं लिखना था, ओके। सो ये डैशबोर्ड पे ही रेंडर होगा, इसलिए दोनों सेम है। बट ये जो है थिएटर वो अलग, ये तो इंडेक्स नहीं है ना, तो हमें इस पर जाना पड़ेगा। तो स्लैश डैशबोर्ड थिएटर, ओके। एंड इसका मैं नेम चेंज करूँगा डैशबोर्ड से थिएटर। लेट्स गो ऑन दैट पेज, you can see we have theater, okay. Okay, so there is one problem, this dashboard and movie is also including that, yeah. So that's the issue in our logic। तो जब हमने इसमें लॉजिक क्रिएट किया था ना, वेयर इज साइड बार, ओके। तो वी हैव साइड बार एंड we have this, so I need to just check if it is has include URL or not, and then if it okay, so what we will do, sometime path name is only slash dashboard, sometime it is slash dashboard and slash anything, okay। तो हमें जो है ये डुप्लीकेट एक्टिव दिखा रहा ना, करना है। तो व्हाट आई विल डू, लाइक इसका जो स्लैश डैशबोर्ड है ना, जो हम इंक्लूड में चेक कर रहे हैं, तो ये डैशबोर्ड आ रहा है, तो इस so actually this issue I will fix in the next video। I need to create one logic for that because we have different URL also, if I am going to explain in this one, the video will go like 4 to 5 hours, so I'm leaving this part for the next part, okay। So you can see we are in the theater and we have in the theater we have move, okay। So uh, let me what I need to do, मुझे ये जो जहाँ जहाँ हमारे मूवीज़ है ना वहाँ वहाँ हम वो करने वाले हैं, थिएटर पेज, थिएटर थिएटर, ओके। इन द मूवीज पेज, theater page we have theater column, okay, to slash theater, okay। So on slash theater we need to display our theater page, not dashboard page, okay। So yeah, for theater also we need theater page, okay। So you can see we have this theater, we have this created address and you are at theater, okay? Whenever we click on add to here, theater that create that new, okay। Let's create that one also, sorry, one here, okay। So you can like create one more here, no no, not this one, copy this one, okay, and just put जहाँ जहाँ मूवी हो वहाँ थिएटर हम लिख थिएटर, and this form will be become theater form, theater form, okay। Let me see if I have any theater form, okay, we have movie sorry, we have movie form, इसको भी हमें चेंज करना, to make it theater form and schema also, we need one schema for theaters, so let me create one schema here, okay। so हम यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, मूवी डॉट स्कीमा डॉट टी एस, ओके। तो बेसिकली नो नो सॉरी, it will be where is rename button, where is, तो ये होगा थिएटर, ओके, नॉट मूवी,
एंड थिएटर में हमें जस्ट कॉपी दिस वन एंड हम इसको प्ले कर देंगे, ओके। तो कंट्रोल सी या कंट्रोल वी। तो थिएटर के पास हमारा होगा नेम, होगा उसका लोकेशन होगा, ओके। सो हमारे पास केवल दो चीज़ें हैं, जस्ट रिमूव ऑल अदर थिंग, राइट हियर लोकेशन, ओके। लोकेशन इज रिक्वायर्ड, location is required, okay. So we have location, we have let's change this one also, not theater, okay। तो जहाँ जहाँ हमारा थिएटर रहेगा उसका स्कीमा ये सब हम कर देंगे, थिएटर फॉर्म, ओके। एंड ट्राई करना खुद से कॉपी एंड इसको चेंज करने का, ओके। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे वो कर सकते हो, ओके। नाउ आई नीड टू import this one in the theater form, okay। Yeah, this name also rename movie form to theater form, okay। तो वी हैव दिस थिएटर फॉर्म, यहाँ पे चेंज करेंगे अब सर, ओके। अगेन वन इश, आई फॉरगॉट टू, उसका नेम जो है ना वो भी चेंज तो करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मूवी फॉर्म है, नाउ इट विल वर्क, मूवी थिएटर, थिएटर on this theater, yeah। So just write theater form schema type here and theater schema, okay। Error you have, and we need location, okay। You can see error gone, and on create movie, okay, yeah। तो भी हमें चेंज करना होगा, जहाँ जहाँ मूवीज फॉर्म है वहाँ, एंड अभी ये सब जो अनयूज इम्पोर्ट है उसको हटाने के लिए शिफ्ट अल्ट ओ, ओके। नाउ वी नीड लाइक क्रिएट थिएटर, एंड हम इसमें और भी अगर थिएटर्स के फील्ड ऐड करने रहेंगे तो ऐड करेंगे, अभी के लिए फुल नेम एंड, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, अदर्स थिंग्स हम क्या करेंगे यहाँ से निकाल देंगे, कैंसिल एंड क्रिएट विल बी देयर, डिस्क्रिप्शन को हम चेंज कर देंगे लोकेशन, तो बेसिकली लोकेशन वो यहाँ पे इंटर करेंगे, तो यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर दे देंगे, इंटर थिएटर और एड्रेस, ओके। कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे हम प्लेस होल्डर देंगे इंटर थिएटर नेम, ओके। लेट्स सी हाउ इट बिहेव, एरर नॉट एरर, okay। Now you can see if I go on theater, what happened? Okay, there is some theater is not, okay। So basically in main.tsx कुछ तो theater theater form, okay। now अगर आप ऐड करने जाओगे you can see we have theater form, ओके। सो इंटर नेम एंड लोकेशन, सो इसमें मैं और भी फील्ड्स ऐड करेंगे हम लोग, जब बैकएंड क्रिएट कर लेंगे ना उसके बाद हम यहाँ कर लेंगे, अभी मैंने इसकी स्कीमा मॉडल जो इसका बनाया नहीं है, तो थोड़े बहुत करेक्शन रहेंगे जब हम उसको वहाँ पे क्रिएट करने जाएंगे। अभी जो इसका कैंसिल बटन है ना, टेबल वी है फॉर्म, ओके। एंड इसका भी आप भी चेंज कर लो, रीनेम इट टू थिएटर कॉलम, कॉलम, ओके। तो ये जो ना फॉर्म है ना हम इसमें पास कर देंगे, ओके। कैंसिल टू डैशबोर्ड पहले डॉन, ओके। सो ये जो हमारा कैंसिल बटन है ना, एक रीडायरेक्ट, इसको हमें टाइप भी देना पड़ेगा, टाइप विल बी ऑलवेज बटन, ओके। बिकॉज ये जब फॉर्म के अंदर यूज़ होता है ना तो एज ए सबमिट बटन काम करने लगता है, सो हमें इसको टाइप जो है बटन देना पड़ेगा। ना अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कैंसिल करता हूँ बिकॉज वो submit नहीं कर रहा, तो वी हैव थिएटर ऑल्सो हियर। एंड अगर आपको इसमें जो भी चेंजेस करने रहे होंगे, लाइक अगर यूआई में कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं, जस्ट डू इट, ओके। we have theater here and we need user also, so user is very easy। हम यूज़र के लिए क्या करेंगे ना,
यूज़र तो हम क्रिएट नहीं करने वाले, यूज़र तो हमारे डेटा लाइक फ्रंट एंड से ही आएंगे। ओके, जो भी यूज़र लॉगिन होगा तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड में बस यूज़र की डिटेल्स को शो करेंगे। तो व्हाट आई विल डू, जस्ट कॉपी दिस पार्ट, ओके, कॉपी दिस वन, ओके, लेटर को ही कॉपी करो एंड पेस्ट इट इनटू डैशबोर्ड, ओके, और डैशबोर्ड, एंड इसका नाम हम चेंज कर देंगे, सो यूजर्स, ओके। एंड यूजर्स के लिए हमें कॉलम चाहिए, वी डोंट नीड फॉर्म, तो हम फॉर्म को डिलीट कर दें। वेयर इज डिलीट बटन, ओके, आई विल डिलीट फॉर्म। तो हम उसको डिलीट कर दिए हैं, एंड अभी इसका मैं नाम चेंज कर दे रहा, यूज़र कॉलम, कॉलम, ओके। तो बेसिकली यूज़र जो होगा वो यूज़र्स का नेम होगा। मैं एक टाइप क्रिएट करता हूँ, ओके, तो लेट मी क्रिएट वन टाइप ऑफ यूज़र, ओके। तो बेसिकली टाइप का क्या होगा, टाइप इसका जो होगा यूज़र्स का फर्स्ट फुल नेम होगा, फुल, दैट विल बी स्ट्रिंग, फुल नेम, ईमेल, ईमेल एंड ईमेल हो गया, फुल नेम हो गया, मोबाइल नंबर, दिस ऑल द थिंग वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम द यूज़र। तो अभी के लिए तीन, फुल नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ओके। नाउ आई विल गो इनटू द, ये फील्ड्स हम बाद में चेंज भी करेंगे रिक्वायर के, जब हम बैकएंड क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद। तो वी हैव यूज़र कॉलम, हमारे पास नेम हो गया, नेम एंड एल्स, नेम एंड नेम, यूजर्स विल हैव नेम, ईमेल, ईमेल और नेम, 1 मिनट सर। तो या यूज़र नेम एंड हम यहाँ पे फुल नेम लिखेंगे, नेम, ईमेल एंड वन थिंग, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ओके, एंड द हेडर विल बी ऑल्सो फोन हैश, ओके। तो वी हैव फोन नंबर, वी हैव ईमेल, वी हैव फुल नेम, ओके। नाउ इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीनेम करते हैं। तो ये हो जाएगा यूज़र पेज, एंड यूज़र पेज के अंदर टेटर, डैशबोर्ड विल डैशबोर्ड यूज़र पेज, ओके, यूज़र पेज, ओके, डैशबोर्ड यूज़र पेज, या डैशबोर्ड यूज़र पेज हम रिमूव कर देंगे, कॉलम की जगह हम यूज़ करेंगे यूज़र कॉलम, इट इज़ यूज़र कॉलम, वाई द इशू यूज़र कॉलम, ओके। एंड हमारी जो डमी थिएटर है ना, हम इसको रिमूव करेंगे, हमें डमी यूजर्स चाहिए, ओके, यूजर्स, यूजर्स, रिमूव ऑल अनयूज्ड इंपोर्ट्स, ओके। सो हम डमी यूजर्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, सेम जैसे हमने चैट जीपीटी को देकर करवाया था। तो मैं इसका टाइप चैट जीपीटी को देता हूँ, हम कुछ तो लाइक डमी डेटा क्रिएट करवा लेंगे। तो जस्ट गो ऑन चैट, गिव मी 14 डेटा, ओके। तो बेसिकली चैट जीपीटी हमें यहाँ पे डेटा दे देगा, ओके, राइट, या हमारे पास डेटा है। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा अपने कांस्टेंट में, ओके। तो हमारा जो कांस्टेंट अभी के लिए हम जैसे हार्ड कोडेड लिख रहे हैं, बट जब हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे तो हम तो हमारा सब डेटा डेटाबेस से आएगा। और नाउ ओनली यूआई क्रिएट कर रहा, तो कांस्टेंट यूजर्स, ओके, यूजर्स ने डमी यूजर्स, यूजर्स, या व्हाट्स अगेन, लेट मी होवर, user is not assignable to type thing, what we have okay, column will, ये होगा यूजर, कॉलम की जरूरत है, ना इट विल वर्क। सो हम क्या करेंगे,
जो हमारा यूजर्स है ना, हम यहाँ पे डैशबोर्ड स्लैश यूजर्स का एक रूट क्रिएट करेंगे मेन डॉट tsx, जैसा हम इन सब के लिए करते हैं। तो जस्ट कम एंड ओपन वन कर्ली path will be slash dashboard एंड हमारा जो पेज होगा यूजर डैशबोर्ड डैशबोर्ड यूजर पेज। ओके, सो अभी हमारा जो साइड बार है ना, वहाँ पे मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। आई होप ओके, नो चेंजेस डैशबोर्ड स्लैश यूजर्स। ओके, यहाँ पे आएंगे and अगर मैं यूजर्स पे जाता हूँ तो यू कैन सी वी हैव दिस यूजर्स ऑल्सो। और यूजर्स पे हमें ये सब की डेटा नहीं चाहिए। लेट मी राइट हियर यूजर्स। ओके, and we don't need add option। या since we have users, तो हम यहाँ पे यूजर्स भी शो कर रहे हैं नहीं भी। ओके, तो नाउ ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं लास्ट में लाइक कल की वीडियो में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, so you can see today we have created this movie page and here we have created one data table and जिस data table का यूज़ हम different like theater and users में भी कर रहे हैं and we have created one this form in with the help of a react hook form। so you can see it is a very reactive form। आप यहाँ पे कोई भी constraint ये सब दे सकते हो। ओके, and also we have completed theater and users part। so अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो एंड कमेंट करो ऑल्सो। ओके, एंड ऑल्सो पोस्ट योर क्वेश्चन इन द कम्युनिटी। आई विल हैप्पी टू लाइक फिक्स योर क्वेरीज। ओके, so yeah, thank you for watching and subscribe it, share with your friends and